its presentation and classification of financial instruments. In this class, we are going to discuss about the recognition of financial instruments, measurement of financial instruments, and derecognition. So, initial recognition of financial instruments. An entity shall recognize a financial assets or a financial liability in its balance sheet when and only when the entity becomes party to the contractual provision of the instrument. So, जो एंटिटी है वो अपने फाइनल असेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट में जब भी दिखाएगी जब वो कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन को फुलफिल करती है. इसका मतलब कि उसके पास राइट है टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑब्लिगेशन टू पे कैश और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. If a transfer of financial assets does not qualify for derecognition, the transferee does not recognize transferred assets as its assets. So, in case a company transfer its financial assets to another company, but it is not liable to derecognize its asset, so the transferee company shall also not recognize such assets to its assets. Initial recognition of financial assets. So, financial assets can be recognized into three categories, which are amortization cost, fair value through other comprehensive income, that is FVTOCI, and fair value through profit or loss, that is FVTPL. In the previous class, we have seen that there are two criteria, which are business model and SPPI criteria. If both are criteria fulfilled, then it is classified as amortized cost. If the intention of the entity is to hold and sell the financial instrument, then it is classified as FVTOCI and otherwise as FVTPL. Initial recognition of financial liabilities. So financial liability can be recognized as amortized cost or fair value through profit or loss, that is FVTPL. So this is what we actually discussed. So he's just summarizing that what can be the classification of those financial assets as well as the financial liabilities. Yes. और जो लोग नए जुड़े हुए हैं, I would rather request them, या आप लोगों ने देखा है कौन कौन है जो बैच में नए हैं, मतलब अभी जो रिसेंट, तो वो पिछली क्लासेस के वीडियो किसने देखे अभी तक हैं? एक ही क्लास का देखा है, तो कौन सा, पहली क्लास का या दूसरी क्लास का? हाँ, तो you should actually see the other videos also so that you can grip this class also. Otherwise आपको यहाँ पर केवल बैठना ही है, समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपने पहला क्लास नहीं देखा तो आपको सेकंड क्लास में क्या हो रहा है या थर्ड क्लास में क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा. सो माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज कि प्लीज सी दोस वीडियोस ताकि आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिक्स के बारे में कुछ पता चले. So now let us discuss some examples of initial recognition to get better understanding of it. First, unconditional receivables and payables. So in case of unconditional receivables and payable, the ये जो क्या बोल रहा है उस पे ध्यान दो तो पता ही नहीं चलेगा कि लाइट है या नहीं. The entity should be a party to the contract and it has a legal right to receive or a legal obligation to pay cash. So the major point is that it has a legal right or obligation to receive or pay cash. Second, the entity receives an order and is committed for the same. Ordered goods or services are not recognized unless they are shipped, delivered, or rendered. In case a entity, for example, in case a entity make a contract for sale of goods, so at the starting of the contract, we do not recognize it as financial instrument because neither had party, इसमें कोई भी पार्टी ने अपनी कोई भी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करी है. First of all, we have to ship, deliver, or render the services to the other party, or the other party has to pay us. If any one of the conditions is fulfilled, then in case we recognize it as financial assets or liability. But the commitment is recognized as financial instrument at net fair value on the date of commitment. In case the entity want to net settle the transaction, so in such a case, then it can recognize it as FVTPL at the net fair value. Third, a previously unrecognized firm commitment is designated as hedge item in a fair value. Hedged, any change in the net fair value attributable to the hedge is recognized as an asset or a liability after the inception of the hedge. In case there is any contract which is unrecognized, any commitment जो कि हमने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करी है, उसको अपने एज अ hedge item शो कर रखा है, लाइक इन्वेंट्री को अपने hedge के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया. Then if there is any change in the hedge item, like there is any change in the fair value of the inventory, then such a change is recognized as a financial assets or liability. A forward contract is recognized as an asset or a liability on the commitment date
instead of on the date on which settlement takes place. When an entity becomes the party to a forward contract, the fair value of the right and obligation are often equal, so that the net fair value of the forward is zero. If the net value of the right and obligation is not zero, the contract is recognized as the asset or liability. यूजुअली क्या होता है कि जब हम कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे जो हमको राइट मिला है और जो ऑब्लिगेशन मिला है उसका फेयर वैल्यू नेट सेटल करने पे जीरो ही होता है, क्योंकि हम हमेशा इसको एज अ हेज स्केल पर्पज से करते हैं। लेकिन इन सम सिचुएशन जो अपना राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ फेयर वैल्यू है वो सेम नहीं होता, तो जो डिफरेंस होता है इसको अपन आइदर एज अ फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी इसको ट्रीट करते हैं और अब रिकॉग्नाइज करेंगे। फिफ्थ, option contract are recognized as asset or liability when the holder or writers becomes a party to the contract. In case of option contract, at the time we done a option contract, we pay a initial amount which is called premium. So when we done a contract, then at the time of the contract, the fair value of the premium that we paid is recognized as a financial asset. Now, initial measurement of financial instrument. So first of all, we have seen the how we are recognize the financial instrument. Now, how can we initially measure the financial instruments? So first is fair value through profit and loss, that is FVTPL. Fixed assets or financial assets or financial liability is measured at its fair value and transaction cost if any is transferred to profit and loss account. In case of FVTPL, we generally measure the financial asset or liability at its fair value only, and we do not consider the transaction cost and we do not adjust it. We just transfer the transaction cost to profit and loss account separately. In case of amortized cost and FVOCI, that is fair value through other comprehensive income, financial assets or financial liability is measured at its fair value adjusted with transaction cost that are directly contributed to the acquisition of assets or issue of liability. In case of amortized cost and FVOCI, we take the fair value and adjust it with the transaction cost. For example, you have a financial asset whose fair value is, and we incur 10 rupees transaction cost. In such case, we adjust the transaction cost and record it at 90 rupees. As you can see on the table below, that in case of amortized cost, financial assets is shown at fair value plus transaction cost, and in case of FVOCI, at fair value plus transaction cost. But in case of FVTPL, we only shown it as fair value. The transaction cost part is transferred to profit and loss. And in case of financial liabilities, there are only two recognition, that is amortized cost and FVTPL. So in case of amortized cost, we record it as fair value less transaction cost, and in case of FVTPL, at fair value. So what is transaction cost? So transaction cost basically the cost that we incurred on to get any financial assets or liability. For example, you cost paid like brokerage, etc. Suppose if for the purpose of advance which we give, generally banks charge processing charges. So that is the transaction cost from the point of view of the borrower, and it is basically cost for them. Whereas from the borrower, from the point of view of bank, it is the income. So for bank, suppose if borrower has to recognize this particular income, this particular liability, then what the borrower will do? It will deduct that transaction cost from the and suppose, and as against that, bank has given the advance and bank is required to value this particular amount, then it will add into the fair value of the assets because it is recognizing the asset, and it will be done as on the date of initial recognition. So as on the date of initial recognition, it is not amortized cost in any of the category. It is always the fair value which is required to be recognized. तो अभी वो fair value कैसे ascertain करते हैं? I think they will explain in their next slide. So to get more of it, let us consider an example. A company issued loan to another entity on 15th March for ₹20,000. Transaction cost is 400. The fair value of the loan on 15th March is ₹22,000. At what amount the financial asset is recognized in the books? So it is a FVOCI. So in such a case, first of all हम चेक करेंगे कि उसकी फेयर वैल्यू क्या है. So इधर जो फेयर वैल्यू है वो ₹22,000 है, ना कि ₹20,000. So हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फेयर वैल्यू लेंगे
एंड उस पर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमने इनकर करी है उसको हम ऐड करेंगे, दैट इज 400 रुपीज़। सो हम उसको जो इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे तो हम 22,400 रुपीज़ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम फाइनेंशियल असेट्स को 22,400 पे दिखाएंगे, लेकिन जो अपन बैंक से एंट्री करेंगे वो 20,000 पे ही करेंगे। जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कहाँ जाएगा? तो इन केस FVOCI इट इज गो टू OCI, एंड इफ केस इट इज FVTPL देन इट इज गो टू P&L। अगर सेम सिमिलर क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर अगर हम FVTPL होता तो हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को ऐड ना करके उसको P&L में सेपरेटली शो करते। Now, regular way contracts. So, what are regular way contracts? A regular way contracts require delivery of a financial instrument be made within the time frame established by legal regulation or by market convention. So, the major thing is that कि जो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम ट्रांसफर करेंगे, डिलीवर करेंगे, वो विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ बाय लीगल रेगुलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ स्टॉक, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है कि हम T+2 डेज में करेंगे, दैट इज ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 डेज फॉर सेटलमेंट। अगर हम इसके अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दूसरी पार्टी से, लेकिन वो हम अनदर टाइम पीरियड में करते हैं जो हमने खुद ने डिटरमाइन किया है, ना कि किसी लीगल रेगुलेशन में, तो वो रेगुलर वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट विद द टाइम फ्रेम फॉर डिलीवरी इज म्यूचुअली एग्रीड कैन नॉट बी अ रेगुलर वे कॉन्ट्रैक्ट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ST Limited enters into a forward contract to purchase 10 lakh shares of ABC Limited in a month's time for the rupees 50 per share. This contract is entered into with a broker, Mr. AG, and not through regular trading mode in a stock exchange. The contract requires Mr. AG to deliver the shares of ST Limited upon payment of agreed consideration. Shares of ABC Limited are traded on a stock exchange. Regular way delivery is 2 days. Assess if the forward contract is a regular way contract. इस क्वेश्चन के अंदर जो ST लिमिटेड है वो 10 लाख शेयर्स परचेज कर रहा है थ्रू अ ब्रोकर, और वो जो टाइम पीरियड है इट इज अ 1 मंथ टाइम पीरियड जिसके अंदर वो सेटल होगा। सो इस केस के अंदर ये रेगुलर वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हम ब्रोकर से कर रहे हैं, ना कि किसी स्टॉक एक्सचेंज से। और जो in this case the contract is directly entered with a broker and is not through a stock exchange. Therefore, the time limit for delivery is not governed by the market regulation, and hence the contract cannot be accounted as a regular way contract. तो इस केस में हम स्टॉक एक्सचेंज ना करके ब्रोकर से कर रहे हैं, इसलिए हम इसको रेगुलर वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। बट इसमें एक और चीज़ है कि अगर जो टाइम पीरियड था जो हमने डिसाइड किया था विच इज 1 मंथ टाइम पीरियड, अगर वो 1 मंथ टाइम पीरियड ना होकर ओनली 2 डेज टाइम पीरियड होता जो कि एक रेगुलर टाइम पीरियड है एज पर स्टॉक एक्सचेंज, तो क्या हम उसको रेगुलर वे में ट्रीट करते या नहीं करते? यानी हाँ, तो उस केस में हम उसको रेगुलर वे में ट्रीट नहीं करते, क्योंकि अभी भी हमारा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो किसी रेगुलर लीगल अथॉरिटी से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, सो हाउ कैन वी account the regular way contract? There are 2 methods, that is trade date accounting and settlement date accounting. So trade date accounting, the trade date is the date that an entity commits itself to purchase or sell an asset. तो ट्रेड डेट वो डेट होती है जिस दिन हम एक्चुअली कोई भी असेट को और लाइबिलिटीज को अपन सेल या परचेज करते हैं। ट्रेड डेट अकाउंटिंग refers to the recognition of an asset to be received and the liability to pay for it on the trade date, and derecognition of the asset is sold, recognized of any gain or loss on disposal of, and the recognition of a receivable from the buyer for the payment on the trade date. तो इसके नाम से पता लग रहा है कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हम ट्रेड डेट पर ही इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इनिशियली जब हमने कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स हमने ली उसको इसको ट्रेड डेट पे ही रिकॉर्ड किया, और जब हमने इसको सेल किया तो उससे हम लोग गेन हुआ, और जब हमने डीरिकॉग्नाइज करा वो भी हमने उसी डेट पे किया जिस दिन हमने उसको डीरिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट वन इज सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। द सेटलमेंट डेट इज द डेट that an asset is delivered to or by an entity. तो सेटलमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन एक्चुअल सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स होता है। एक मैं स्क्रीन फिर से रीशेयर करता हूँ। Screen is visible to all. सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सेटलमेंट डेट वो डेट है जिस दिन हम एक्चुअल डिलीवरी कर रहे हैं, जिस दिन हम एक्चुअल सेटलमेंट कर रहे हैं पेमेंट्स का।
like we have paid for the financial assets. The settlement date is a date that an asset is delivered to or by an entity. Settlement accounting refers to the recognition of an asset on the date is received by the entity, and the derecognition of an asset and recognition of any gain or loss on disposal of the day that it is delivered by the entity. So the difference between trade date accounting and settlement date accounting is that in trade date we account on the date when the transaction is done, but on settlement date accounting we make the entry on which settlement is done. To get more clarification about it, let's discuss an example. On 30th March 2015, an entity enters into an agreement to purchase a financial assets for rupees 1000, which is the fair value on that date. On balance sheet date, that is 31st March 2017, the fair value is rupees 1020, and on settlement date, that is 2 April 2017, it is 1030 rupees. So first of all, at what value we initially recognize it? So the fair value here is 1000 rupees, and there is no transaction cost. So we recognize it at 1000. So let's first discuss the trade date accounting. On trade date accounting, we recognize it on 30 March 2017. जिस दिन हमारा trade हुआ है. So we pass the entry at investment account to payables. Then on 31st March 2017, that is the end of the year, we recognize the any change in the fair value. So there is a change in the fair value of 20 rupees. 1020 less 1000 rupees. So we recognize the fair valuation gain. That is investment account debit to fair valuation gain by 20 rupees. Then there is a settlement date. That is 2nd April 2017. On settlement date we check that there is any change in the fair value. If it, then we recognize it and also make the payments and settle. The entry is payable account debit 1000, investment account debit 10, to fair value gain 10 to bank account. So in this case हमने पहले इसको 1020 पे रिकॉर्ड कर रखा था, उसकी फेयर वैल्यू चेंज होकर 1030 हो गई, तो हमने जो 10 रुपीज का जो गेन है वो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया. उसके अलावा हमने जो सेटलमेंट था वो कर दिया बाई पेइंग थ्रू बैंक 1000 रुपीज. Now let us discuss the same through settlement date accounting. So on settlement date accounting, there is no entry on 30 March 2017 as there is no settlement has been done. On 31st March 2017, there is change in fair value. So हमको उस गेन को रिकॉर्ड करना होगा. But there is no investment account क्योंकि हमने अभी कोई भी उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है अपनी बुक्स के अंदर. तो हम उस गेन को कैसे सेटल करें? तो उसके लिए हम एक अलग से एक अकाउंट खोलेंगे, that is fair value adjustment account, like we have done in amalgamation. So we made an entry like fair value adjustment account debit to fair value gain. So this we recognize a gain of 20 rupees. Now on 2nd April 2017, we pass the entry of investment account debit 1030. Here we record the investment to its fair value, that is 1030 rupees, and settle the amount by to bank account 1000 rupees, to fair value adjustment account 20, and to fair value gain 10. So हमने जो previous gain था fair value का 20 रुपीज का वो हमने इन्वेस्टमेंट में उसको रिकग्नाइज कर दिया, एंड जो एडिशनल जो गेन हुआ है ऑन द सेटलमेंट डेट ऑफ 10 रुपीज उसको भी हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया. थैंक्स. मॉर्निंग ऑल. अब अचल ने अभी तक फाइनेंशियल असेट का मेजरमेंट के बारे में बताया, और उसके बाद मैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा. तो मेजरमेंट के बारे में उसने बताया था कि सबसे पहले अगर कोई भी असेट अपने पास आती है तो उसको अपने इनिशियली मेजरमेंट कैसे करेंगे, अपने उसको या तो FVTOCI पे, FVTPL पे या फिर अमोर्टाइज कॉस्ट पे करेंगे. लेकिन सब्सिक्वेंट मेजर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो अपना ईयर एंड आ गया, ईयर एंड पे अपने उसको अगर उसकी फेयर वैल्यू में कोई चेंज है, तो अगर फेयर वैल्यू में चेंज है तो उसको अपने किस तरह मेजर करेंगे उसके बारे में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर बताया गया है. बिफोर ही स्टार्ट्स ऑन द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स, ये तो इसने बहुत सिंपल से कुछ एग्जांपल्स लिए जहां आप ये कह रहे हैं कि भाई फेयर वैल्यू जो है वो जो भी मार्केट रेट उस दिन होगा वैसा कुछ होगा. बट देन देयर आर वेरियस अदर सर्कमस्टेंसेस, है ना. इसने जो एग्जांपल्स लिए वहां पे केवल वही एग्जांपल्स लिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसी को ही फेयर वैल्यू मान. बट क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो फेयर वैल्यू नहीं हो?
इज इट पॉसिबल कि जिस तारीख को आपने जो ट्रांजेक्शन किया और जिस अमाउंट पे वो पैसा लिया, दैट जिस प्राइस पे वो आपने कोई प्रोडक्ट लिया या कुछ भी आपने ट्रांजेक्शन किया, दैट वाज नॉट द फेयर वैल्यू। तो जनरली द प्रिंसिपल इज कि जब भी वो ट्रांजेक्शन होगा और जिस प्राइस पे वो ट्रांजेक्शन होगा, दैट विल बी द फेयर वैल्यू। बट बहुत जगह ऐसा नहीं होता है। कैसी जगह पे नहीं होता है कोई आपके दिमाग में कि हाँ ये ऐसा कोई आइटम है जहाँ पे फेयर वैल्यू उस ट्रांजैक्शन डेट का फेयर वैल्यू नहीं है और उस ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो उसकी फेयर वैल्यू नहीं है? ऐसा कभी कोई है? एम्प्लॉइज को लोन देते हैं कंसेशनल रेट। एम्प्लॉइज को लोन देते हैं कंसेशनल रेट। एम्प्लॉइज को आपने लोन दिया कंसेशनल रेट पे, है ना? तो आप स्टार्टअप फंडिंग करते हैं तो उस टाइम पे भी फेयर वैल्यू के बराबर नहीं देते कभी कभार प्रीमियम पे। देयर मे बी सम पॉसिबिलिटी, बट वो जनरली वैल्यूएशन के बेसिस पे होता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस वैल्यूएशन के बेसिस पे है तो वो फेयर वैल्यू ही होगी। और कॉन्ट्रैक्ट के केस में पहले प्राइस डिसाइड होगी, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन के प्राइस फेयर वैल्यू से कम हो। नहीं, वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो डेरिवेटिव और उसका एक अलग एस्पेक्ट है। उसमें हमें फेयर वैल्यू, हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी ये पता नहीं रहता कि अल्टीमेटली क्या उस दिन प्राइस रहेगा, बट उसकी फेयर वैल्यू को हमें डिटरमाइन करनी होती है। कई बार जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है और या आपको कोई गवर्नमेंट लोन मिल रहा है एंड दैट इज इंटरेस्ट फ्री लोन, है ना? जैसे आप कह रहे हो कि कंसेशनल रेट पे इंटरेस्ट दिया है, वैसे ही कंसेशनल रेट पे या एट लोअर रेट आपने कोई लोन लिया है, तो देन आल्सो दैट लोन इज नॉट एट अ फेयर वैल्यू। क्योंकि अगर वो आप लोन ले रहे हो और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कुछ आपको फ्री भी दे रहा है ना? क्योंकि इन कमर्शियल पैरेलल्स वन इज रिक्वायर्ड टू पे द इंटरेस्ट एज पर द मार्केट रेट। वैसे ही कई बार जैसे गवर्नमेंट कंपनीज में अपन क्या करते हैं कि जो भी उसके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो भी उसके वेंडर्स होते हैं, दे सप्लाई गुड्स टू दी कंपनीज, और उसमें से कुछ रिटेंशन मनी जो है वो जब उसका पेमेंट कर रहे होते हैं तो कुछ रिटेंशन मनी वो उसका रख लेते हैं, उसको पेमेंट नहीं करते और उसके ऊपर किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं देते। सो दैट इज ऑल्सो नॉट एट फेयर वैल्यू। कि जैसे मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपीज का आपने माल सप्लाई किया और 10% उसने पैसा जो है वो रिटेन कर लिया और ये कहा कि इसको मैं आपको परफॉर्मेंस गारंटी जब 2-3 साल बाद कंप्लीट होगी तब हम इसका पेमेंट करेंगे। तो जो 1,000 रुपीज है उसके ऊपर आप कोई ब्याज भी नहीं दे रहे हो और उसको आप 1-3 साल बाद पेमेंट कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको उसका फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डिटरमाइन करना है। आपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया है तो उसका फेयर वैल्यू आपको एज ऑन द डेट ऑफ एडवांस डिटरमाइन करना है। आपने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है गवर्नमेंट से तो फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना है और उस लोन को उस फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, ना कि जितने अमाउंट पे वो लोन आया है या जितना अमाउंट का लोन आपने दिया है। ऑन दैट फेयर वैल्यू यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो वो फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, है कोई आपको आइडिया कैसे डिटरमाइन होगा? सर जो आउटवर्ड अपन जो पेमेंट करेंगे उसका पीवी फैक्टर से निकालेंगे। यस, आप जो टोटल ओवरऑल उसको पेमेंट करने वाले हो, जैसे आपने सपोज 1 करोड़ रुपीस का लोन लिया है ना, और आप कह रहे हो कि साहब इसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है एंड इट विल बी से देयर विल बी बुलेट पेमेंट आफ्टर 5 इयर्स। तो आपको उसका प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में करना पड़ेगा, विच में भी से ₹75 लाख और ₹60 लाख। So you need to recognize that amount at ₹60 lakhs. अब आपके पास रुपया तो 1 करोड़ आया है और आप उसको रिकॉग्नाइज कितने पे करोगे? 60 लाख पे।
तो बाकी 40 लाख क्या हो गया आपका? फेयर वैल्यू डिफरेंस जो था उसमें डाल दूं। वो क्या हो गया? आपको लॉस कहाँ हुआ? गेन हुआ ना। आपको पेबल कम है, 60 लाख ही है, देना 1 करोड़ है, तो देयर इज ए गेन। तो इस गेन को कैसे अकाउंट फॉर करना है? क्या इसे हम डे 1 ही 40 लाख रुपए रिकॉग्नाइज कर लें, या इसको हम ओवर ए पीरियड रिकॉग्नाइज करें? तो ये एक स्टैंडर्ड इस पे थोड़ा साइलेंट है, तो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करना पड़ता है वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस। मेनी टाइम्स द कंपनीज हैव टू टेक ए डिसीजन कि मुझे इस गेन का ओवरऑल बेनिफिट क्या पूरे टाइम हो रहा था क्या, तो मैं पूरे टाइम में रिकॉग्नाइज करेंगे। आज ही पूरा बेनिफिट हो गया इसका, तो आज रिकॉग्नाइज कर लें। तो ये कुछ कंपनीज को अपना एक अकाउंटिंग पॉलिसीज डेवलप करना होता है, बेसिस दैट दे नीड टू रिकॉग्नाइज द गेन। तो एक बार ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम ये गेन और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट से सारी चीजों को वापस से डिस्कस करेंगे। So let's start. After initial recognition, an entity shall measure a financial assets at measure. Sir, I mean, मुझे तो आती है। आ रही है, छेड़ मत जाओ। चल आगे। After initial recognition, an entity shall measure a financial asset at amortized cost, B fair value through OCI, C fair value through P&L. तो फर्स्ट इनिशियली रिकॉग्नाइजेशन करने के बाद अपने असेट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे कर सकते हैं, उसको वैल्यू फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई भी कर सकते हैं, और फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अपने तीनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अपने को इनिशियली रिकॉग्नाइजेशन में भी तीनों ऑप्शन अवेलेबल थे, और अपने उसको सब्सिक्वेंट मेजर भी इन तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। An entity shall apply the impairment requirement to the financial asset that are measured at amortized cost and to financial asset that are measured at FTOCI। और अगर किसी भी एसेट में फाइनेंशियल एसेट में कोई इम्पेयरमेंट होता है, तो उसको अपने को इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के बाद अगर उसकी इम्पेयरमेंट होता है उसकी वैल्यू में, तो उसको अपने को अगर वो असेट FVTOCI या फिर अमोर्टाइज कॉस्ट पे वैल्यू की गई है, तो अपने को इसका इम्पेयरमेंट लॉस भी बुक करना होगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि FVTPL के केस में ये ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि FVTPL के केस में वो पहले ही फेयर वैल्यू थ्रू P&L के ऊपर मेजर की गई है, मतलब कि जो वैल्यू है वो फेयर वैल्यू पे ही मेजर की गई है, तो इसलिए उसके ऊपर फेयर वैल्यू का इफेक्ट पहले ही आ चुका है, मतलब कि उसके अंदर इम्पेयरमेंट लॉस जो हो चुका है उसका इफेक्ट भी आ चुका होगा, इसलिए फिर उसको उसके ऊपर इम्पेयरमेंट को बुक करने की जरूरत नहीं होती। तो ये कहना चाह रहा है कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस जो है, तो जब भी किसी एसेट का इम्पेयरमेंट होता है ना, तो दैट इम्पेयरमेंट इज रिकॉग्नाइज इन दी वेयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट क्लासिफाई होती है, उनका जो भी गेन और लॉस है, क्योंकि उसको आपको हर बार फेयर वैल्यू ही करना है, तो उसमें इम्पेयरमेंट जितना भी होगा वो जब भी आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस करोगे उसको, तो ऑटोमेटिक वो हमेशा रिकॉग्नाइज होता रहेगा। सो दैट इज व्हाई इम्पेयरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो रिकॉग्नाइज आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे कोई मान लो असेट है, अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो इम्पेयरमेंट अगर कोई है तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है। या कोई एसेट को आपने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लासिफाई किया हुआ है, तो उसका गेन और लॉस तो अदरवाइज ओसीआई में जाता है, लेकिन अगर उसमें कोई सेपरेट इम्पेयरमेंट है तो देन दैट इम्पेयरमेंट विल गो टू दी पीएन। उसके आगे अमोर्टाइज कॉस्ट मेजरमेंट। तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेजरमेंट के अंदर सबसे जरूरी चीज आती है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। तो अपने को अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर अपने को एक EIR निकालनी पड़ती है, जिससे कि अपने जो कैश आउटफ्लो हैं कैश इनफ्लो हुए हैं उसको वो बराबर हो जाएंगे। तो अपने ने जैसे इंटर के टाइम पे भी IIR पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर क्या होता है कि IIR ऐसी रेट होती है जो अपने इनफ्लो और आउटफ्लो को बराबर कर देती है। तो इस केस में अपने अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर अपने वो IRR को कैलकुलेट करेंगे, और उससे अपने
उस असेट के आउटफ्लो और इनफ्लो को ध्यान में रखते हुए उसको हम अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर मेजर करेंगे। इंटरेस्ट रेवेन्यू shall be calculated by using the effective interest rate method. This shall be calculated by applying EIR method to the gross carrying value of the financial asset. तो इनिशियल मेजरमेंट के बाद सबसे पहले जो असेट की वैल्यू अपनी जो बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी है उसके ऊपर अपने EIR की रेट अप्लाई करेंगे, उससे जो इंटरेस्ट आएगा उससे अपने कैश फ्लो को लेस करके जो लास्ट में फाइनल जो बैलेंस बचता है उसको अपने उस साल की अमोर्टाइज कॉस्ट पे अपने उसको मेजर कर लेंगे। फॉर परचेज्ड और originated credit impaired financial asset, the entity shall apply the credit adjusted effective interest rate. If FA that are not POCI financial asset but subsequently have become the credit impaired financial asset, the entity should apply EIR for subsequent reporting. तो ये POCI परचेज और ओरिजिनेटेड क्रेडिट इम्पेयर्ड फाइनेंशियल एसेट, ये एक तरह की एसेट होती है जिसमें अपने एसेट को मेजर शुरू में जो इनिशियली रिकग्नाइजेशन करते हैं तो उसके अंदर क्रेडिट लॉस होता है शुरू में। उस लॉस को रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको फाइनेंशियल एसेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। और अगर इस केस में भी असेट के अंदर मतलब कि अपने को EIR अप्लाई करनी पड़ेगी और उसके बाद उसकी EIR अप्लाई करने के बाद जो उसकी कॉस्ट आएगी उसको अपने को एट द एंड ऑफ द ईयर EIR के अकॉर्डिंग उसको मेजर करना पड़ेगा। While calculating effective interest rate method, the entity should adjust the fee that are integral part of the effective interest rate unless the financial instrument is measured at fair value through P&L। मतलब कि अगर ये आगे नहीं बढ़ रहा सर, अभी सही कंटिन्यू सर इसमें तो नहीं हुआ पता नहीं यार ना ये while calculating effective interest rate, the entity should adjust the fee that are integral part of the effective interest rate unless the instrument is measured at fair value through P&L। तो आपने पहले देख चुके हैं कि अगर कोई असेट फेयर वैल्यू थ्रू P&L मेजर की जाती है तो उसके ऊपर अगर कोई अपने पे की है, अगर उसके फाइनेंशियल असेट को अपने मेजर करते वक्त अगर उसके ऊपर कोई फी पे की है तो उसको अपने एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले फेयर वैल्यू थ्रू P&L के अंदर फेयर वैल्यू पर मेजर की जाती है और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे फी वगैरह है वो पहली P&L में जा चुकी होती है। The description of such fee may not be indicative of the nature to determine whether these are integral part of effective interest rate of a financial instrument but substance of the service provided। तो अपने को कोई भी फी उसके नाम से ये डिसाइड नहीं होगी कि उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को उसके अंदर इंक्लूड करना है या नहीं करना, जबकि अपने को देखना पड़ेगा कि सब्सटेंस में जाके कि वो फी उसके अंदर मतलब कि उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पार्ट हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तो आगे मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए गए हैं जो अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगी और कुछ नहीं बनेगी। तो पहला एग्जांपल जैसे कि ओरिजिनेटिंग फीस रिसीव्ड बाय एंटिटी रिलेटिंग टू द क्रिएशन और फाइनेंशियल एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट दैट इज प्रिपेयरिंग प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट एंड क्लोजिंग द ट्रांजैक्शन। तो अगर किसी भी अपने को जैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए फी अपनों ने इनकर की है तो वो उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगी। और अगर fee charged for servicing a loan, fee charged for servicing a loan will be not included in as transaction cost because of मतलब कि अगर ये कोई कंपनी सर्विसिंग फीस अगर चार्ज कर रही है वो किस लिए चार्ज करेगी, क्योंकि उसका वो एक तरह से उसका बिजनेस होगा तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चार्ज की जाएगी और वो अपने इंडिया 115 के अकॉर्डिंग मेजर की जाती है तो वो वहाँ पे मेजर की जाएगी, इसलिए इसको अपने इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये वो फीस है जो आपको रेगुलर बेसिस पे उससे लेनी है ना, सर्विसिंग फीस है।
तो ये आपको हर बार ही लेनी है या मंथली लेनी है, क्वार्टरली लेनी है? So if these pieces are there, या कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो रहा है तब आपको लेनी है, कोई आप दूसरी उसको कोई फैसिलिटी दे रहे हो, है ना, आप उसको बैंक स्टेटमेंट का आप हर क्वार्टर सपोज कोई बैंक कहता है कि साहब वी विल चार्ज से 50 रुपीज, सो दीज आर नॉट included in the transaction cost for any of the asset created as financial asset. Yes. Commitment fee received by entity this place are regarded as compensation for an ongoing involvement with the acquisition of financial instrument. However, whenever commitment expires without a loan being disbursed, the fee is recognized as revenue on expiry. मतलब कि अगर किसी कंपनी ने कमिटमेंट फीस ली है, कमिटमेंट फीस ली है किसी लोन को प्रोवाइड करवाने के लिए, तो उसको एक बार के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर अपने इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन अगर ये मतलब कि ईयर एंड पे जाके मतलब कि जब अपने फाइनेंशियल एसेट कुछ पूछना है, तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो। लेकिन अगर उसके फाइनेंशियल एसेट्स के टर्म के एक्सपायर होने पर अगर लोन डिस्बर्स विदाउट लोन डिस्बर्स नहीं किया जाता तो उसके लिए ये एक तरह से इनकम बन जाएगी और इसको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। Commitment fee to originate the loan where it is unlikely that specific lending agreement will be entered into. और कमिटमेंट फीस अगर मतलब अगर कंपनी ने ली है तो ओरिजिनेट लोन मतलब कि अलग अलग पार्टीज से ओरिजिनेट करने के लिए जब तक वहाँ पे कोई स्पेसिफिक लैंडिंग एग्रीमेंट नहीं हो तो उस अपने को उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना ट्रांजैक्शन कॉस्ट में। कंपनसेशन फॉर एक्टिविटीज सच एज इवैल्यूएटिंग द borrower's financial condition, evaluating and recording guarantees, collateral and other securities agreement, negotiating the term of the instrument. और अगर अपने जैसे कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की है किसी बोरोवर की फाइनेंशियल कंडीशन को अपने को इवैल्यूएट करने के लिए, उसकी कोई गारंटी दी है, उसके लिए अपने कोई फी इनकर की है, उसके लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। लोन सिंडिकेशन फीस रिसीव्ड बाय एन एंटिटी arrange a loan and retain no part of the loan package for itself. और मतलब कि अगर लोन सिंडिकेशन फीस ली है तो इसको अपने को इंक्लूड नहीं करना है। एग्जांपल, on 1st January 2001 purchased 10,000 11% bond issued by Jet Corporation Limited at rupees 112 per bond maturing on 31st December 2008. Calculate the EIR assuming that the interest rate is payable annually on 31st December every year. तो सॉल्यूशन भी साथ ही दे देता है। ये फर्स्ट इसमें दिया है, आगे नहीं दिया, आगे नहीं दिए। तो ये समझ में आया किसी को? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहाँ कैलकुलेट किया तुमने? सर एक बार संभाल देना, एक बार सही है यार, लिखना रह गया तो कितना आएगा? EIR का मतलब मेथड यही होता है कि जो अपने इंटर के टाइम पे सीखा हुआ है, जो अपने इंटरपोलेशन मेथड अपने को यूज करना पड़ता है। मतलब इसमें जितना भी कैश आउटफ्लो होता है और कैश इनफ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग अपने को एक रेट को मतलब कि देखो, आपको अगर ऐसे देखने से तो ये लगेगा कि इसका 11% जो है ना वो सीधा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना। लेकिन अपन ने इसको परचेज करने के लिए कितने का पेमेंट किया? 112 रुपए का, जबकि वो है कितने का वैल्यू? उसका 100 रुपए उसका वैल्यू है। तो ये कह रहे हैं कि साहब 112 रुपए देने के बाद में आप उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट कमाओगे। ऐसे तो अपन 11% रेट है, तो आप अभी जो जनरल अकाउंटिंग है उसमें तो अपन सीधा 11% पे उसकी
अकाउंटिंग कर देते हैं, जो भी आपको पैसा आएगा उसके बेसिस पे, ठीक है। लेकिन इस केस में हमें ये देखना है कि टोटल कितना कैश फ्लोस आगे के पीरियड में होता रहेगा, ठीक है। तो 2001 के अंदर मेरे बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा वहां पे, क्योंकि तुमने शायद अपने लैपटॉप पे लिया हुआ है। तो सुनेगा सर, आपकी आवाज तो आ रही है सर, आवाज आ रही है, आवाज तेज है, आ रही है। हाँ जी। सो बेसिकली 112 रुपए आपने दिए और 11 रुपए आपको आते रहेंगे। तो जो जनरल अपन इंटरेस्ट रेट लेते हैं वो सब नहीं लेना, आप जो टोटल इंटरेस्ट कमाओगे और टोटल जो आपका कैश फ्लो है वो लास्ट में जाके आपको 111 रुपए और मिलेंगे, 100 रुपए प्लस 11 रुपए उस साल का इंटरेस्ट। सो बेसिस दैट यू नीड टू कंप्यूट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। और इसमें जैसे इन्होंने तो सीधा सीधा 112 रुपए की बात कर दी कि इस रेट पे, मार्केट रेट पे ले लिया। सपोज 112 रुपए के साथ साथ ये कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट और इनकर करते तो इनका एक्चुअल आउटफ्लो कितना होता? 112 रुपए पे 3 रुपए इन्होंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करी, तो 115 रुपए इनका एक्चुअल आउटफ्लो होता। तो बेसिस दैट ₹115 यहाँ पे आउटफ्लो होता और हर साल आपको 11 रुपए मिलते, फिर लास्ट में आपको 111 रुपए और मिलते। तो इसके बेसिस पे आपका जो टोटल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो 11% नहीं, उससे थोड़ा कम आएगा। वो मे बी दैट 10.7% आता, 10 व्हाटएवर, जो भी इस कैलकुलेशन के हिसाब से। सो दैट शुड बी योर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो आप पहले दिन इसको रिकॉग्नाइज कितने पर करते? इस एग्जांपल में 112 पे, अगर 3 रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती तो 115 रुपए, और उस 115 रुपए को आपको ऊपर जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका जो निकलेगा 10.7% या जो भी रेट निकलेगा, उस रेट से आपको इंटरेस्ट का रिकॉग्निशन करना है, न कि 11% के रेट पे। एंड जो भी आप, लेकिन पैसा आपको 11% से आएगा, 100 रुपए के 11% से पैसा आएगा। तो आप जब आपका जो टोटल एसेट है वो पहले दिन तो 115 हुआ, फिर उसके ऊपर आपने से 10 रुपए 11 रुपए ब्याज आ गया, कुछ परसेंटेज जो भी आपने रेट लगाए उसके बेसिस पे, तो वो 126 हो गया या 125 हो गया, फिर 11 रुपए आपको रिसीव हो गए, तो आपका वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट का 114 रुपए रह गया। फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। जो इनकम ओवरऑल आप वही रिकॉग्नाइज करोगे जो आप एएस में कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कर रहे हो। थोड़ा सा इनकम का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो दिस इज द डिफरेंस। आगे Next example, on 1st January, Mr. A purchased 12% bond issued by Jet Limited at ₹11,118 per bond, maturing on 31st December 2003 at transaction cost of ₹7 per bond, redeemable at 10% premium on face value, that is 1,000 per bond. Calculate the EIR, assuming that the interest rate is payable annually on 31st December every year. तो इस केस में अपने को EIR कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे निकलेगी? सर ये दिक्कत हो गई, आ रहा है? हाँ सर, ये निकालना था। ये बंद हो गया, वापस शेयर कर। ये तो चेंज करता ना उधर, तो इधर स्क्रीन बंद हो जाती, और उधर कोई पार्टिसिपेंट बताएगा भी नहीं कि स्क्रीन बंद हो गई। ये तो मैंने इधर लगा रखा है एक डुप्लीकेट। सर किसमें तो होगा?
शेयर पे So please continue. We are continuing with the class now. Sir, so as per the question, the data was given that number of bonds were 10 and the cost of first one bond is 1,180 rupees. So we have to calculate the IRR for the bond. So first for the cash out. कैश आउटफ्लो अरे चुप हो जाओ कैश आउटफ्लो वो 11,180 और उसके बाद सारे कैश इनफ्लो आ रहे हैं 1200 रुपए और लास्ट में 10,000 प्लस 1200 रुपए हमको भी आंसर की फॉरवर्ड कर दे हां वैसे पता मेरे पास क्या कर रहे हैं क्लास में क्लास और दूर तक पहुंच जाओ वेट तो IRR कैसे निकलेगी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है IRR यहाँ पर जो भी कैश फ्लो हो रहे हैं उसको इसमें मैंने फॉर्मूला लगा रखा है कि IRR इज इक्वल टू और ब्रैकेट में उसमें ये सारे के सारे जो कैश फ्लो है उसको फिर मैंने इसके अंदर जैसे ही डाला तो ये IRR अपने आप कैलकुलेट कर रहा है तो अपने को एक्सेल के थ्रू अपने को IRR कैलकुलेट बहुत आसानी से हो सकता है मैंने जैसे ही कैश फ्लो इसके अंदर डाला इसने मेरे को IRR कैलकुलेट करके दे दी इसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी इनकम होगी हर साल में जो इनकम आएगी वो अपने को यहाँ पे शो होती रहेगी तो ये पहले इनिशियल मेजरमेंट अपना 11,180 रुपये हुआ उसके बाद ये अपना कैश फ्लो आया क्योंकि अपने इंटरेस्ट रेट उसकी इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जो भी उसकी कैश फ्लो आना था वो आ गया यहाँ 1200 रुपये उसके बाद ये वाला इंटरेस्ट इनकम आ रहा है जो अपना P&L में बुक होगा ये अपने IRR से कैलकुलेट होकर आ रहा है जो कि अपने कैरिंग अमाउंट जो कि 11,180 थी उससे मल्टीप्लाई होके 8,334 रुपये ये अपने P&L में बुक होगा ये अपना कैश फ्लो होगा तो लास्ट में अपना कैरिंग अमाउंट आएगा 10,814 रुपये तो इस तरह से अपने कैलकुलेट होते होते फाइनल में 11,200 का जब कैश अपना इनफ्लो आएगा उससे उसकी कैरिंग अमाउंट लास्ट में फाइनल में जाके 0 हो जाएगी तो एक तरह से 3 साल का बॉन्ड था मैच्योरिटी ये आपने इसके अंदर कैश आउटफ्लो में शुरू में 7 रुपए ट्रांजैक्शन ये एक्चुअली आपको टेस्ट कर रहा था कि वो 7 रुपए आपको तो बिल्कुल सही किया इसने आगे बेसिकली ये 7 रुपए भी आपको तो इट शोज कि आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो और समझ भी रहे हो आगे चल रहा है ठीक है AIR for floating rate in this financial instrument where a floating rate financial instrument is recognized initially at amount equal to the principal receivable or payable on maturity. Re-estimating the future interest payment has no significant effect on the carrying amount of the financial instrument. तो इसमें ये कह रहा है कि अगर अपने किसी फ्लोटिंग अपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फ्लोटिंग रेट से रिलेटेड है जैसे कि अपना अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेपो रेट से रिलेटेड कर दिया अपनों ने तो रेपो रेट बाद में मार्केट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी तो मार्केट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी तो उसमें फेयर वैल्यू में जो भी चेंज आएगा वो अपनी मतलब कि अपने उसको जैसे जैसे मतलब कि उसके अंदर चेंज आएगा अपने उसके अंदर रीएस्टिमेट करते जाएंगे अपने फिर अमोर्टाइज कॉस्ट को भी क्योंकि जैसे जैसे अपने फ्लोटिंग रेट चेंज होगी अपने टोटल अपने अमोर्टाइज अपने EIR भी रिवाइज होती रहेगी और उसके अकॉर्डिंग अपने कैरिंग अमाउंट उसकी भी रिवाइज होती जाएगी इस वजह से अपने को इसके अंदर ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएंगे EIR फॉर POCI asset for POCI financial asset the entity should apply the credit adjusted effective interest rate
to the amortized cost of the financial asset from the initial recognition. अगर कोई POCI फाइनेंशियल एसेट है तो उसके लिए अपने को क्रेडिट एडजस्टेड EIR का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपने क्रेडिट लॉस अपने को जब इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन होता है तो ये एसेट ऐसी होती है जिसमें शुरू में क्रेडिट लॉस कुछ हुआ होता है उस एसेट पे, इस वजह से अपने को क्रेडिट एडजस्टेड EIR का यूज करना होता है। When calculating the credit adjusted effective interest rate, the entity should estimate the expected cash flow by considering all the contractual terms of the financial asset. For example, prepayment, extension, call, and similar option and initial expected credit loss. तो अगर शुरू में अगर अपनों कोई फीस वगैरह इनकर की है उसके साथ साथ में अगर उसमें कोई प्रीपेमेंट हो रहा है और अगर या फिर अपने उसको बाद में एक्सटेंशन देंगे या फिर कोई शुरू में इनिशियल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हुआ है तो उसको भी अपने को EIR तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों में से किसी ने NBFC का कहीं किया है ऑडिट? जतिन, PPT इज नॉट विजिबल। चलो कोई देख रहा है उधर। मेरा PPT नहीं आ रहा है। हाँ, राघवी, आर यू देयर? हेलो। हाँ राघवी सर, तो वी आर हियरिंग यू। सो राघवी, अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें जब भी कोई लोन दिया है तो उसको ये देखना है कि एक्सपेक्टेड कॉल्स या एक्सपेक्टेड मनी रिकवरेबल कितना होगा। तो क्या हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि मैंने टोटल लोन्स जो है वो से 1 लाख रुपीज का लोन दिया एंड देयर आर इंस्टॉलमेंट्स व्हिच आई एम गोइंग टू रिसीव फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स, है ना। और उसके बाद बट आई एक्सपेक्ट कि कंसीडरिंग द इंडस्ट्री मेरे को लोन्स का प्रीपेमेंट हो जाता है, तो क्या उसका भी मुझे कुछ इसमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वन हैज टू डील विद सच प्रीपेमेंट? यस सर, अगर इन केस ऐसा है कि हमें रीजनेबल सर्टेनिटी है कि हमारा ये क्लाइंट है, ये इतने लाइक फॉर एग्जांपल हमारा लोन का जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का है, बट हमें पता है कि हमारा क्लाइंट उसको अप्रोक्सीमेट 3 इयर्स में फुल पेमेंट कर देगा मुझे, तो मुझे मेरी डिस्काउंटिंग 5 इयर्स से ना लेकर हमें 3 इयर्स की ही करनी होती है, क्योंकि हमें रीजनेबल सर्टेनिटी है। बट हमें इस चीज का फुल अश्योरेंस होना चाहिए। अगर हमारे पास में वो नहीं है तो फिर हम उसे 5 इयर्स के बेसिस पे ही कैलकुलेट करते हैं। So basically many times you need to see कि आपका within आपका terms and conditions as per agreement 5 years का है, लेकिन based on the trends you see कि मेरे इस इंडस्ट्री में या मैं जो भी ऐसे लोन देता हूँ मेरे को प्रीपेमेंट आ जाता है। So basis that you need to calculate the effective interest rate। हालांकि ये काफी डिफिकल्ट होता है कि आप सपोज देयर आर लैक्स ऑफ लोन्स, उनसे आप किस तरीके से कंप्यूट करोगे कि भाई आपको ये पैसा जो है 1 लाख में से 60 में 60% में तो आपको पहले आ जाएगा और किसी में बाद में आएगा। बट स्टिल सच assumptions are required to be made by the companies while deciding the effective interest rate। Yes। या आपको लगता है कि कुछ पैसा आपने ऐसा दिया हुआ है, आपको पता है कि यार ये तो इसमें से कुछ तो डूबेगा। कई बार आदमी रिस्क लेता है ना कि यार चलो ठीक है अपने को पैसा मिल रहा है तो कुछ तो डूबेगा, तो वो इफेक्टिव जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है उसको भी आपको पहले ही समझना और उसको भी पहले ही कंसीडर करना व्हाइल डिसाइडिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। मॉडिफिकेशन मतलब कि अगर आपने जो आपने अभी तक देखा कि अमोर्टाइज कॉस्ट कैश फ्लो के बेसिस पे चलता है, जो भी अपना फ्यूचर में कैश फ्लो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा उसके बेसिस पे अपने अमोर्टाइज कॉस्ट अपने कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो तो मॉडिफिकेशन क्यों हो सकता है, उसके 2 रीजन है। पहला तो रीनेगोशिएशन होगा या फिर रिवीजन इन एस्टिमेट्स होगा। तो अगर रीनेगोशिएशन मतलब कि अपनों ने लोन की अमाउंट्स दे रखी है कोई और
Modification due to renegotiation. When the contractual cash flow of the financial assets are renegotiated or otherwise modified, the renegotiation or modification does not result in deregulation of the financial asset. The entity shall recalculate the gross carrying amount of the financial asset using the financial assets original effective interest rate and shall recognize a modification gain or loss in P&L. So any cost or fee incurred adjusted the carrying amount of the modified financial assets and amortized cost over the remaining term of the modified financial assets. और अगर कोई अपने फाइनेंशियल एसेट है उसके अंदर अपने मॉडिफिकेशन होता है ड्यू टू रिकॉग्नाइजेशन रीनेगोशिएशन, और अगर रीनेगोशिएशन का इफेक्ट इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन उससे अपने फाइनेंशियल एसेट में मॉडिफिकेशन चेंज नहीं आ रहा, मतलब कि बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है, और उसको उसकी वजह से अपने को उसको डी रिकॉग्नाइज नहीं करते, मतलब कि अपने आगे पढ़ेंगे कि डी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है फाइनेंशियल एसेट्स को अगर अपने उसके अंदर रीनेगोशिएशन की वजह से उसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा होता है, तो उसको अपने को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। लेकिन अगर वो डी रिकॉग्नाइज नहीं कर अपने कर दे तो उसके अंदर अगर अपना कोई फेयर वैल्यू के अंदर चेंज आने की वजह से उसके अंदर कोई गेन या लॉस हो रहा है तो उसको अपने को P&L में बुक करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर अपने को कोई फी इनकर अपनों ने की है या कोई इनकर की है तो उसको भी अपने को अमोर्टाइज कॉस्ट की बेसिस पे उसको ओवर द पीरियड अपने को उसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन ड्यू टू रिवीजन इन एस्टिमेट इफ एंटिटी रिवाइज। ये इन्होंने जो पहला मॉडिफिकेशन की बात करी वो करी जहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स में आपका कुछ चेंज हो रहा हो, है ना। जैसे अभी कोविड पीरियड चल रहा था, तो कोविड पीरियड में क्या हुआ, कई सारे बैंक्स ने लोगों को लोन दे रखे थे, बैंक्स ने कई सारे लोगों को, ठीक है, बट देन दे हैव मॉडिफाइड देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, उनको कुछ एक्सटेंशंस दे दिया। तो जो है आपने एक्सटेंशंस दिया कि ये पेमेंट 1 साल में होना है, नहीं अब हम इसको तो 3 साल में करेंगे, तो क्या हुआ, सपोज सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है ना, लेकिन आपने पेमेंट जो है वो आगे कर दिया या कुछ इंटरेस्ट का वेवर कर दिया, तो इन दैट केस देयर इज सम चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द आइटम। तो वो कह रहे हैं कि वो उसका फेयर वैल्यू में जो चेंज आया है उसको आप वापस असर्टेन करके और नए वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करो, और उसकी वजह से जो भी मॉडिफिकेशन गेन और लॉस है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए। तो ये तो हो गया जहां पे मॉडिफिकेशंस, जहां पे ड्यू टू चेंज इन दी टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन दी, या कई बार ऐसा भी होता है कि बट these gains and losses are recognized when there is insignificant change in the terms and conditions of the agreement, insignificant change है। और कहीं मान लो सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो वो अभी आगे डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो क्या हमें करना चाहिए। Modification due to revision in estimate. If entity revise its estimate of payments and receipts excluding modification due to renegotiation, it should adjust the gross carrying amount of the financial asset or amortized cost of a financial liability to reflect actual and revised estimate contractual cash flows. The entity recalculates its revised value by discounting the revised cash flow at the financial of the financial instrument ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, मतलब यहाँ पे अपने को रेट यूज करनी है वो पहले वाली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ही यूज करनी होती है, जो ये पहले अपने ने इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के टाइम पे निकाली थी, तो उसी के बेसिस पे अपने को यहाँ पे अपने को कैश फ्लो का वापस से रीएस्टिमेट करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई अपने को लॉस या फिर गेन हो रहा है तो उसको अपने को P&L में बुक करना पड़ता है। द एडजस्टमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन P&L एज इनकम और एक्सपेंस। For example, an entity gives a loan of 10 lakh with repayment being rupees 10 lakh every year for the next 10 years starting from the end of the first year. Calculate the EIR. In this case, solution will be this.
विजिबल होगी। स्क्रीन नहीं आ रही। ये जब भी तू चेंज करता है स्क्रीन नहीं आ रही, अब आ रही है, आ रही है। हाँ, कंटिन्यू। तो इन आवर क्वेश्चन द प्रिंसिपल अमाउंट वाज 10 लाख और अपने को इसके अंदर अपने को दे रखा था कि कैश फ्लोस क्या होगा। अपने को हर ईयर के एंड पे अपने को 1.5 लाख रुपए उसको अपने को मिलेंगे। पहले उसको 10 लाख रुपए अपने फर्स्ट ईयर में रख के बिगनिंग में अपने को उसको दिए और उसके बाद अपने को हर साल में 1.5 लाख रुपए मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अपने को इस केस में अपने को फिर से IRR कैलकुलेट करनी थी। तो अपने को कैसे करेंगे, कैश फ्लो अपने लिखने के बाद सारे के सारे IRR का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना कैश फ्लो अपने को बता देगा कि इससे IRR कितनी हुई है और उसके बेसिस पे अपने को ये अपना कैश फ्लो हो जाएगा और ये वाला इंटरेस्ट इनकम का पार्ट हो जाएगा जो हर साल अपने को P&L में बुक करना पड़ेगा। और ये वाला जो अमाउंट बचेगा ये अपना अमोर्टाइज कॉस्ट होगा जो कि अपनी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। Next example, assuming that the borrower returns the rupees 2.5 lakh over and above the 1.5 lakh at the end of the 5th year. Compute the adjustment to be made to the amortized cost of the loan. Since the borrower returns 4 lakh at the end of 5th year, the entity should revise the interest income in such a way that the interest income continues to work out of the same IRR of 8.14% following the तो इस केस में क्या होगा, मतलब कि अपना क्वेश्चन ये था कि अगर पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से अपना 1.5 लाख है, 1.5 लाख अपने को मिल रहा था, लेकिन 5वें साल के एंड में अपने को 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। तो उस वाले केस में अपने क्या करेंगे, अपना ये क्लोजिंग वैल्यू तो आ ही जाएगी, अपने इसको इंटरेस्ट इस पे चार्ज होगा और इसके अकॉर्डिंग अपने क्लोजिंग वैल्यू 5 साल के अकॉर्डिंग पिछले साल जितनी सेम आ रहेगी। जैसे कि ये 6,90,000 ये पिछले साल 4th ईयर के एंड में आ रही थी, ये 4th ईयर के एंड में तो सेम आएगी, लेकिन अपने 5th ईयर के एंड में अपने 3,46,000 बचेगी। तो अब अपने को यहाँ पे जो बचा हुआ कैश फ्लो है 5th ईयर के बाद, जो कैश फ्लो अपना जो बचा हुआ है उसको अपने को ओरिजिनल रेट जो क्या थी 8.14%, इसके अकॉर्डिंग अपने को कैश फ्लो का मतलब पीवी अपने को देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई फेयर वैल्यू गेन या लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे अपने इसको कैलकुलेट करेंगे नीचे। तो यहाँ पे मैंने इसका कैश फ्लो लिखा है और एट द ईयर मतलब 5th ईयर के एंड के बाद यहाँ पे अपने इसका जो भी कैश फ्लो बचा है उसको अपने पीवी करके 8.14% की रेट से देखेंगे कि किसकी फेयर वैल्यू क्या आ रही है। तो उसकी फेयर वैल्यू जब अपने देखेंगे तो 4,22,000 आ रही है, लेकिन उसकी अपनी जो क्लोजिंग अपनी केयरिंग अमाउंट आ रही है वो 3,46,000 रुपए आ रही है। तो इस तरह से अपने जो लोन की अमाउंट दी थी उसके अंदर अपना गेन हो रहा है। तो ये अपना 75,479 का ये अपने को फेयर वैल्यू गेन हो जाएगा। इसको अपने को P&L में बुक करना पड़ेगा और उसके बाद ये इसकी ओपनिंग अमाउंट में चेंज आएगा 6th ईयर के एंड में और अपने अब ये 4,22,000 की वैल्यू अपनी बैलेंस शीट में शो होएगी। तो अगर इसको अपने देंगे तो उसके आगे देखते हैं तो कंटिन्यू करेंगे तो अपने ईयर एंड में 5th ईयर के एंड में ये अपनी जनरल एंट्री पास होगी तो अपनी लोन के साइड बढ़ जाएगी। तो लोन साइड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन प्रीपेमेंट ऑफ लोन, अपने को गेन हुआ है तो उसको अपने गेन बुक कर लिया है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, A Limited purchase a debt instrument with 5 year remaining to maturity for its fair value of rupees 1,000 including transaction cost. The instrument has principal amount of rupees यहाँ चेंज नहीं हुआ तेरे
A Limited purchased a debt instrument with five years remaining to the maturity for its fair value of rupees 1,000, including a transaction cost. The instrument has a principal amount of rupees 1,250 and carries fixed interest of rupees of 7.4% that is paid annually. तो अपने को हर साल के एंड में अपने को 59 रुपीज का इंटरेस्ट तो मिलेगा। अपने को कंप्यूट करनी है मोर्टाइज कोस्ट। तो मोर्टाइज कोस्ट फिर से अपने को कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए तो अपने का प्रिंसिपल स्क्रीन को शेयर कर ले, फिर वही आती रहेगी। ठीक। द प्रिंसिपल अपना जो इनिशियल कैश आउटफ्लो वाज 1000 दैट इज प्रिंसिपल प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और अपना इसके बाद कैश इनफ्लो आ रहा था 59 रुपीज दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अपने 59 रुपीज का इंटरेस्ट का कैश फ्लो आ रहा है और लास्ट में अपने को 1250 रुपए प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट 1309 रुपए अपने को मिलेगी। तो अपने कैश फ्लोस का के अकॉर्डिंग अपने IRR कैलकुलेट करेंगे और उससे अपने अमोर्टाइज कोस्ट अपनी फर्स्ट ईयर के इनिशियल में तो अपने 1000 थी, क्योंकि अपने इसको 1000 पे बुक किया था। उसके बाद ये IRR के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट इनकम आएगी और उसके कैश फ्लो आएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी अमोर्टाइज कोस्ट निकलती रहेगी और एट द एंड ऑफ द 5th ईयर ये अपने अमोर्टाइज कोस्ट 0 हो जाएगी। Return of an entity should directly reduce the gross carrying amount of financial asset when the entity has no reasonable expectation of recovering a financial asset in its entirely or a proportion thereof. A right to constitute a re-recognition event, मतलब कि अगर कोई अमाउंट ऐसी है जिसपे एंटिटी को लगता है कि इसमें कोई भी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन नहीं है इसको रिकवर करने की, तो एंटिटी उसको राइट ऑफ कर देगी। और ये राइट ऑफ का क्राइटेरिया वैसे री-रिकॉग्नाइजेशन इवेंट के अंदर भी आता है, जो आगे उमंग डिस्कस करेगा। तो बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज, तो बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज इसके अंदर क्या होगी, पहले तो जैसे कि अगर इस इक्विटी शेयर्स हेड को ट्रेडिंग के केस में, इक्विटी शेयर हेड को ट्रेडिंग के केस में अपने को उसको नॉर्मली FVTPL पे अपने उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके अंदर अपने क्या होगी देखते हैं। ऑन 5th जनवरी बोट 100 शेयर ऑफ ABC Limited at 180 market rate was on 31st March was 875. The equity share were held for the purpose of making short-term profit for trading purpose. So journal entry or carrying amount of and P&L will be as follows. तो सबसे पहले अपने उसको अपने इक्विटी शेयर खरीदे हैं 850 के अमाउंट पे, 100 शेयर खरीदे हैं, तो अपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हो जाएगी 85,000 और अपने बैंक से क्रेडिट हो जाएंगे 85,000। तो अपने सबसे पहले परचेज किया, उसको अपने फेयर वैल्यू पे बुक कर लिया। तो इनिशियल मेजरमेंट हो गया अपना फेयर वैल्यू पे। उसके बाद 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज्ड गेन या प्रॉफिट एंड लॉस। तो अपना ये वाला कैसे आया, अपने 850 की अपने इनिशियल रिकॉग्नाइज किया था और अपने ईयर एंड पे उसकी फेयर वैल्यू 875 हो गई। तो अपने को 25 रुपीज का गेन हुआ, तो पर शेयर पे तो अपने टोटल गेन हो गया 2500 का। तो अपने को उसको 2500 को P&L के अंदर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि FVTPL पे रिकॉर्ड की जा रही है। तो अपने P&L के अंदर अपने देखेंगे तो P&L के अंदर आएगा 2500 रुपए का गेन आ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट अपने बैलेंस शीट के अंदर तो अपने 2500 रुपए का गेन अपने P&L में आ जाएगा और बाकी की साइड अपनी फेयर वैल्यू के थ्रू अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर ली जाएगी। बॉन्ड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग FVTPL,
तो एफबी अगर अपने पहले तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देगा तो अपने अब बॉन्ड को देखते हैं। अगर वो एफबी टीपीएल पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ऑन 1 अप्रैल bought 6% bond of ABC Limited at 85 maturing on 31st March 2005 market rate on 31st March 2002 was 89 the bond were held for trading purpose। तो जनरल एंट्रीज क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये अपने 850 पे अपने उस 85 पे उसको खरीदा था, उसके बाद अपने को ईयर एंड पे अपने को इसके ऊपर इंटरेस्ट की इनकम हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम 6000 के अकॉर्डिंग। उसके बाद और अपने अब उसके बाद फेयर वैल्यू अपने 89 हो गई थी ईयर एंड पे, और अपने जो इनिशियल कॉस्ट थी वो 85 थी। तो इसके अंदर आगे डिस्कस किया गया था फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइसेस ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग टू रीजन। फर्स्ट वाज चेंज इन द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बिटवीन द डेट ऑन विच the bonds were purchased and the valuation date, as the bond is fixed rate interest bearing security। ठीक है, पहला तो बैच चेंज ये मतलब 4 रुपीज का जो चेंज आ रहा है वो किस किस कारण की वजह से हुआ है। पहला तो अपना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट की चेंज होने की वजह से हुआ है, मतलब कि जो मार्केट रेट जो चल रही होगी एट द टाइम ऑफ जब हमने बॉन्ड को खरीदा होगा और जो आज की डेट है उसके अंदर अपना जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होगी उसके अंदर चेंज आ चुका होगा। और दूसरा चेंज इन द क्रेडिट रिस्क ऑफ द इशूअर, और जो क्रेडिट रिस्क होता है जो इशूअर का होता है, जो सामने वाली पार्टी का जो पहले क्रेडिट रिस्क ज़्यादा हो सकता है उस वजह से उसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी, और अगर अपना क्रेडिट रिस्क अब कम हो गया है तो इंटरेस्ट रेट कम होगी। तो इस वजह से उसका जो ये 4 रुपये का चेंज आ रहा है वो इन दोनों की वजह से होगा। तो इस केस में अपना ये जो 4 रुपये का जो गेन है वो अपना एफबीटीपीएल पे रिकॉर्ड किया, एफबीटीपीएल के अकॉर्डिंग पीएनएल में जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज्ड गेन 1540 रुपये से एंट्री हो जाएगी। और ये वाली एंट्री अपनी अमोर्टाइज कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो ये वाली एंट्री होनी है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, ये वाली चलती रहेगी। उसके बाद डर्टी प्राइस का कॉन्सेप्ट। डर्टी प्राइस क्या होती है, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड दैट इज नॉर्मली कोटेड इज नोन एज डर्टी प्राइस। मतलब कि जो अगर किसी बॉन्ड की प्राइस मार्केट में जो चल रही होती है उसको डर्टी प्राइस कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक तो उसका प्रिंसिपल का अमाउंट होगा वो उसको अपने क्लीन प्राइस कहेंगे, और उसके अंदर साथ में इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी इंक्लूड होता है जो कि उसके साथ साथ अक्रूड होता रहता है ओवर द पीरियड। तो उसको दोनों को इंक्लूड करने के बाद वो डर्टी प्राइस बन जाता है। तो जब भी अपने कोई मतलब जब भी अपने कोई शेयर अपने को कोट मतलब कि मार्केट रेट पे अपने को खरीदते हैं तो उसके अंदर 2 प्राइस होती है। एक तो जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो क्लेम प्राइस होती है, और जो इंटरेस्ट की अमाउंट जो उसके अंदर अक्रू हो चुकी होती है। तो उसके बाद बॉन्ड एफबीटी ओसीआई। तो अगर पिछले वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर वो अपने बॉन्ड है इज हेल्प टू अचीव एट ऑब्जेक्टिव बाय कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट। तो अगर मतलब कि पिछले वाले केस में अगर वो इन दोनों पर्पस के लिए रखे होंगे तो वो एफबीटी ओसीआई के अकॉर्डिंग बुक किए जाएंगे। तो उस वाले केस में बाकी सारी एंट्री सेम रहेगी, बस एक एंट्री ये वाली चेंज हो जाएगी कि उसके अंदर वो एफबीटी ओसीआई में जाएगा। पिछली बार वो एफबीटीपीएल पे जा रहा था, उस बार वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एफबीटीपीएल पे जाएगा। और अनरिकॉग्नाइज्ड जो गेन है वो ओसीआई पे बुक किया जाएगा। बात करेक्शन कर दिया क्या 85 यहाँ पे भी यही है, फिर वो कहा कि वो ऐसे चल रहा है। वो ये सारी गलतियां इसने जानबूझ के की हुई है। नेक्स्ट
उसके बाद आता है बॉन्ड अमोर्टाइज कॉस्ट। इन द प्रीवियस एग्जांपल इज बॉन्ड इज हेल्ड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव बाय कलेक्टिंग कॉन्टेक्चुअल कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट्स। तो इस केस में उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा क्योंकि उसका पर्पस सिर्फ कॉन्टेक्चुअल कैश फ्लोस को ही अपने को रिसीव करना है। तो उस केस में उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर किया जाएगा। तो इनिशियल मेजरमेंट वही फेयर वैल्यू को होगा, उसके बाद उस पे इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। वो उसके अमोर्टाइज कॉस्ट के अकॉर्डिंग अपने EIR के अकॉर्डिंग जो उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम बुक करना होता है वो मतलब कि अपना टोटल 8,460 रुपीज होगा, लेकिन अपना 6,000 रुपये अपने को एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कैश फ्लोस के रूप में आ चुका है। तो बाकी का 2,460 रुपीज अपना EIR के अकॉर्डिंग अपने को इंटरेस्ट इनकम बुक करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ऑल द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन दोज इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। क्योंकि मतलब कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो भी अपने इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, वो सारे के सारे मेजर कैसे किए जाते हैं, वो फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मेजर किए जाते हैं। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कॉस्ट में भी एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ फेयर वैल्यू एंड कॉस्ट represent the best estimate of तो fair value। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स फेयर वैल्यू क्यों होगा, अमोर्टाइज कॉस्ट क्यों नहीं हो सकता? कोई बताएगा आप में से? क्या उसमें किन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता वो? अमोर्टाइजेशन कॉस्ट को क्लासिफाई करने की कंडीशन होती है कि उनको अपन एंड तक होल्ड करें मेजर के साथ। तो आप कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो भी नॉन रिडेमेबल, वो तो हो गया एक तो बिजनेस मॉडल की बात, वाला टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला क्या सिचुएशन। वो दूसरी बात, एक तो बिजनेस में बोल गया, दूसरी वाली SPP8। हाँ वही है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के जो पेमेंट होते हैं उसमें ये सेटिस्फाई नहीं होती है कंडीशन। यहाँ पे आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में पता नहीं कि कितना पेमेंट आना है और कब आना है, तो इसलिए इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं कर पाते, इसको हम फेयर वैल्यू पे कर सकते हैं। फेयर वैल्यू में इट कैन बी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, बट देयर इज ए ऑप्शन टू रिकॉग्नाइज दैट इज at fair value through OCI also. In certain circumstances, cost may be an approximate estimate of fair value, and cost represent the best estimate of fair value within that range. Indicated that cost might not be representative of the fair value of the instrument include the following। मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि कभी कभी कॉस्ट भी मतलब अपनी फेयर वैल्यू के इक्वल हो सकती है, लेकिन ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जब अपने फेयर वैल्यू ये कॉस्ट होगी वो फेयर वैल्यू के बिल्कुल बराबर नहीं होगी। तो पहला केस क्या है, ए सिग्निफिकेंट चेंज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टी कंपेयर विद बजट प्लान और माइलस्टोन्स। मतलब कि अगर कंपनी के जो बजट्स के अकॉर्डिंग अगर उसके अंदर कुछ वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा। मतलब तो उसकी फेयर वैल्यू उसकी कॉस्ट से अलग चलेगी, क्योंकि अपना बजट के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट डिसाइड होगी और जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी फेयर वैल्यू अलग चल रही होगी। तो चेंज इन द एक्सपेक्टेशन दैट द इन्वेस्टर्स टेक्निकल प्रोडक्ट माइलस्टोन विल बी अचीव्ड। चेंज मतलब कि अगर उसके एक्सपेक्टेशन थी, अगर मतलब कि इन्वेस्टिंग की शुरू, अगर वो कोई कंपनी के कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही थी कि पहले तो उसकी टेक्निकल उसकी रिलायबिलिटी थी कि हाँ कि जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा उससे भी उसकी फेयर वैल्यू ज़्यादा हो रखी होगी, लेकिन एक्चुअल में जो उसके अंदर चेंज आ गया कि अब वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ सकता, उससे उसकी फेयर वैल्यू फिर से कम हो गई। तो पहले अगर उसको अपने उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग मतलब मेजर कर रहे थे तो उसको फेयर वैल्यू उसकी नीचे गिर जाएगी। क्या हुआ? A significant change in the market for the investors equity or its product or potential product, और अगर अब सिग्निफिकेंट चेंज आ गया मार्केट शेयर में, अपनी कंपनी के मार्केट शेयर में सिग्निफिकेंट चेंज आ गया तो उसकी जो फेयर वैल्यू हो जाएगी या फिर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इसलिए उसकी कॉस्ट उसकी फेयर वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती। A significant change in the global economy or the economic environment in which the investee operates। वो अगर ग्लोबल इकोनॉमी में अगर चेंज आ गया होगा तो उससे
फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी में वो चेंज आ गया होगा। A significant change in the performance of the comparable entities or in the valuation compared by the overall market। और अगर अपने कंपेरेबल एंटिटी मतलब कॉम्पिटिटिव की वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ गया, मतलब कि अगर उसके कॉम्पिटिटर मार्केट में जो कॉम्पिटिटर है उनकी मतलब वैल्यूएशन में भी बहुत ज्यादा चेंज आ गया, उससे अपनी कंपनी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। उससे उसकी फेयर वैल्यू कम हो गई, लेकिन उसके जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो सकती है, तो इस वजह से अपने उसको उसकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया होगा। और इंटरनल मैटर ऑफ द इन्वेस्टेड सच एज फ्रॉड, कमर्शियल डिस्प्यूट, लिटिगेशन, चेंजेस इन द मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी, तो इन सभी अगर चेंज हुए हैं तो उससे उसकी फेयर वैल्यू में फर्क पड़ सकता है। Evidence from the external transaction in the investee's equity, either by the investees or by the transfer of equity instrument between third parties। और अगर मान लो अगर कंपनी ने नए इक्विटी शेयर वगैरह इशू कर रहे हैं तो उससे भी कंपनी के मतलब कि वैल्यू में चेंज आ सकता है कि कभी कभी मतलब कि अगर नई शेयर नई इक्विटी वगैरह इशू होती है तो उससे मार्केट में उसके फेयर वैल्यू एकदम से बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, तो उससे वो उसकी कॉस्ट के इक्वल में नहीं रहेगी। द इन्वेस्टमेंट इन द quoted equity instrument or the contracts at quoted equity investment cost is never the best estimate of fair value of the such investment। और अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है मतलब जैसे इक्विटी मतलब कि इक्विटी के केस में उसकी जो मतलब कि मार्केट प्राइस अगर चल रही है, मतलब कि अपने स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो अगर स्टॉक की वैल्यू जो मार्केट अपने स्टॉक एक्सचेंज में चल रही होगी वही उसका बेस्ट एस्टिमेट दे सकती है, क्योंकि मार्केट सभी चीजों को कंसिडर करके चलता है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, एन एंटिटी कैन मेक an irrevocable selection of initial recognition for particular investment that would otherwise be measured at FVTPL to present subsequent change in fair value through OCI। मतलब कि अगर एक बार वो ये OCI में अगर उसने मेजर करने का एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर वापस वो FVTPL पे शिफ्ट नहीं हो सकती। उसके बाद subsequent measurement of financial liabilities after initial recognition and entity shall measure a financial asset at या फिर तो amortized cost पे या फिर FV फेयर वैल्यू थ्रू। इससे पहले अभी ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में आपको जो फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना होता है, तो इन्होंने बताया कि भाई ये फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से फेयर वैल्यू कम या ज्यादा किसी पर्टिकुलर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का जो आपने दिया होता है वो हो सकता है। तो अभी क्या होता है कि जैसे लिस्टेड कंपनीज के केसेस होते हैं, तो वहां पे तो आपको फेयर वैल्यू बिकॉज द कोटेड मार्केट प्राइस इज अवेलेबल, तो वो मिल जाता है, ठीक है ना। विच इज बेसिकली यू कैन से कि लेवल 1 इंफॉर्मेशन विच इज देयर, ये लेवल 1 इंफॉर्मेशन, लेवल 2 इंफॉर्मेशन, लेवल 3 इंफॉर्मेशन, ये क्या है? देयर इज अनदर स्टैंडर्ड, कौन सा? 113, इंडेक्स 113, जहां पे फेयर वैल्यू मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन किया जाता है, वो पूरा एक अलग से स्टैंडर्ड है जिसको अपन कभी अलग से पढ़ेंगे। बट अदर देन कोटेड प्राइस, कोटेड मार्केट प्राइस, अदर देन लिस्टेड कंपनीज, जो दूसरी कंपनीज है उनका फेयर वैल्यू कैसे किया जाए, तो वो लेवल 2 और लेवल 3 इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के बेसिस पे आपको उन कंपनीज का भी फेयर वैल्यू लेना होता है। और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनीज ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट्स को ऑन दैट वैल्यू इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड, है ना। अभी एक रिसेंटली एक इश्यू हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो बोनस शेयर्स इश्यूज कर देते हैं कई बार, है ना। जैसे लिस्टेड कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू किया, तो बोनस शेयर इश्यू करते ही क्या हुआ, प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया। मोमेंट बोनस शेयर हैव बीन इश्यूड, प्राइस इज रिड्यूस्ड, तो आपने जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्टेड है वो तो वही ले लिए जो क्या जो आपके पास में बिफोर बोनस है, और रेट वो ले लिया जो आफ्टर बोनस है।
तो ये भी गड़बड़ हो जाती है। यू शुड बी अवेयर ऑफ कि मेरे को उस डेट को क्या रेट लेना है और क्या नंबर से मुझे उसको अप्लाई करना है। सो बेसिस दैट यू नीड टू टेक द फेयर वैल्यू ऑफ दोस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किस रेट पे आपको उसको लेना है, क्योंकि उसकी वजह से एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपका इधर तो गेन या लॉस बुक हो जाता है, एक्चुअल में कुछ आया नहीं, देयर इज नो रियलाइजेशन और देयर इज नो लॉस। तो आपके प्रॉफिट लॉस के फिगर्स जो हैं वो हर क्वार्टर या अगर मान लो एनुअल डिस्क्लोजर एनुअल रिपोर्टिंग हो रही है तो एवरी ईयर उसमें चेंज आ रहा है विदाउट एक्चुअल रियलाइजेशन और विदाउट एक्चुअल इनकरेंस ऑफ लॉस, जबकि आपको टैक्स में कुछ और तरीके से उसका पेमेंट करना है। तो इस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, आपकी अकाउंटिंग में कुछ और भी चेंज आएगा क्या है? आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का रिकग्निशन भी होना चाहिए। तो ये इम्पैक्ट्स भी यहाँ पर आते हैं बिकॉज ऑफ द फेयर वैल्यू determination, because of the recognition of the asset at the fair value. Continue. तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पर होगा, पहले या फिर तो एक ऑप्शन है अपने पास कि अमोर्टाइज कॉस्ट पर करें या फिर दूसरा ऑप्शन है कि फेयर वैल्यू थ्रू P&L करें। तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L के केस में द फेयर वैल्यू चेंजेस ऑन फाइनेंशियल लायबिलिटी दैट इज डेजिग्नेटेड एज दैट फेयर वैल्यू थ्रू P&L is split into two components and presented as follows: amount of change in the fair value of the financial liability that is contributable to change in the credit risk of the liability is presented in the other comprehensive income. The remaining part of change in the fair value of the liability shall be presented in the P&L account. और अगर फेयर वैल्यू में अगर अपने जो चेंज होता है, मतलब कि अगर अपने लायबिलिटीज के पार्ट में फेयर वैल्यू के अंदर अपने जो चेंज आता है वो किस वजह से आता है, उसको अपने दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं। पहला तो कि क्रेडिट रिस्क होता है, उसके अंदर अगर चेंज आता है तो उस वजह से, और दूसरा जो एक्चुअल में जो उसकी फेयर वैल्यू में चेंज हुआ है, मतलब कि लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू में चेंज हुआ है, उस वजह से उसको इन दो कंपोनेंट में बांटा जा सकता है। तो दिस इज फॉर माय साइड। तो लायबिलिटीज भी अपन बात कर रहे थे, तो शुरू में मैंने बताया था जैसे रिटेंशन मनी की लायबिलिटीज है ना, जहाँ पे आप क्या बोलते हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू रिकॉग्नाइज करते हो, है ना, एंड देन देयर इज अ डिफरेंस। ये सवाल मैंने एक खड़ा किया था ना आपके सामने, और उसको हमें कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो सबसे पहले तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू आपने रिकॉग्नाइज किया है ना, 100 रुपए को आप 70 रुपीज पे लेके आए, तो देयर इज ए लायबिलिटी इन योर बुक्स। अब आपको वहां पे भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है ना, जो ऑलमोस्ट वो जो जिस रेट पे आपने पीवी किया है तो वो आ जाएगा, या अगर कोई आपने उस वक्त ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करी है तो थोड़ा डिफरेंस भी प्रेजेंट वैल्यू में हो सकता है। ठीक है, नाउ ऑन दैट लायबिलिटी यू नीड टू रिकॉग्नाइज द इंटरेस्ट एवरी ईयर या फॉर ईच पीरियड आपको, और उस लायबिलिटी को आपको क्या करना है ना, इट इज कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ लायबिलिटीज। आप उस लायबिलिटी को अल्टीमेटली ओवर ए पीरियड ऑफ से 3 इयर्स आपको उसको 100 रुपए पे लेके जाना है। तो 70 रुपए से हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो 75 हो जाए देन। तो दिस इज हाउ दिस लायबिलिटी विल एक्चुअली गेट इंक्रीज्ड। एंड व्हाट वी कैन डू फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट जो कि डिफरेंस है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप उसको गेन रिकॉग्नाइज करो, बट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज करो, ये नहीं कहता। सो समटाइम्स दैट इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी। तो वो आप उसको स्ट्रेट लाइन भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे यू कैन रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर अमाउंट ओवर ए पीरियड। तो ये हो गया लायबिलिटी का केस। सिमिलरली जैसे मान लो एम्प्लॉय को कंसेशन पे लोन दे रखा है, तो दैट लोन इज आल्सो recognized at present value,
तो वो प्रेजेंट वैल्यू से क्या हो जाएगा, उसका आपका लोन जो है वो उसमें आपको लॉस आएगा या गेन आएगा, जो लोन दे रखा है, जो लोन आपने दे रखा है एम्प्लॉइज को एट ए कंसेशन, so whether there will be a loss to the company or a gain to the company? Yes, there will be a loss to the company. तो वो लॉस आपको रिकॉग्नाइज करना ओवर ए पीरियड। और जो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आएगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कम आएगा या ज्यादा आएगा? आपने जितने रेट पे दे रखा उससे ज्यादा आएगा। यस, सो उस एडिशनल रेट पे आपको उसको अकाउंट फॉर करना है। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया रिगार्डिंग गवर्नमेंट लोन एट इंटरेस्ट रेट, सॉरी एट कंसेशनल रेट और इंटरेस्ट फ्री रेट, तो इसको हम लिंक करते हैं विद इंड AS 109 vis-a-vis इंड AS 20। व्हाट इज इंड AS 20? गवर्नमेंट ग्रांट। तो कहते हैं कि अगर कंसेशनल रेट पे आपने पैसा लिया हुआ है, तो अब जैसे मान लो ये जितने भी लोन्स हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ से मेट्रो के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जयपुर मेट्रो को जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन दे रखा है। So basis considering that interest free loan, similar way you will be basically computing the present value of that loan और उसको आपको वापस अनवाइंडिंग करना है। बट वो जो डिफरेंस है, that difference is what? जो डिफरेंस आया है, what is that difference? That difference is government grant। क्योंकि वो सरकार से आपको आया हुआ है, तो सरकार से अगर आपको कोई इस तरीके के इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, so Ind AS 20 says that is the grant। तो उस ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने का फिर आपको Ind AS 20 के हिसाब से मेथड देखना है। Ind AS 20 ये कहता है कि आपको उसको सिस्टमेटिकली ओवर ए पीरियड ऑफ बेनिफिट व्हिच यू गेट, आपको वहां पे रिकॉग्नाइज करना है। सो देयर विल बी ए डेफर्ड ग्रांट। वो जो आपका डिफरेंस आएगा वो डेफर्ड ग्रांट में चला जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू में चला जाएगा, एंड दैट डेफर्ड रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और अगेन जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन है वो कम पे हुआ, तो उसको आपको अनवाइंडिंग करना पड़ेगा थ्रू बाय चार्जिंग इंटरेस्ट एट द इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। सो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कई सारी इस तरीके की अकाउंटिंग है जो आप डे इन डे आउट जहां कहीं पे भी आपको या तो इंड AS का ऑडिट करना है या इंड AS का कहीं कंसल्टिंग काम करना है या कहीं पे आपके ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिलेवेंट है ही है। सो दीज आर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स। अपन जो नेक्स्ट स्पीकर हैं उनका प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तो लेकिन समझ नहीं आएगा ना उनको, समझे तो ठीक है, समझा फिर फटाफट 15 मिनट। और क्या हर्ष के लिए वी ऑल शुड क्लैप। काफी इसने मेहनत करी है? He has given his maiden presentation और काफी मेहनत करी है इसने। Next. So after initial recognition and subsequent measurement, de-recognition of financial assets and financial liabilities। अब financial assets को और de-recognize कैसे करेंगे वो अपन पढ़ रहे हैं। अपने को de-recognize तब करना है जब या तो उससे right to receive contractual cash flows expire हो जाए या फिर वो asset ही transfer हो जाए। For example, अगर एक 8% डिवेंचर लोन है और वो 5 years की मैच्योरिटी के लिए है, तो आफ्टर 5 years वो क्योंकि राइट टू रिसीव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एक्सपायर हो जाएंगे, तो हमें उसको डिरिकॉग्नाइज कर देना है। या फिर अगर अपन उसको मिड ऑफ द ईयर में, मिड ऑफ द टेन्योर में भेज देते हैं, तो अपने को उसको उस टाइम पे, जिस टाइम पे अपन ने भेजा है उस टाइम पे डिरिकॉग्नाइज कर देना है अपनी बुक्स में से। अब जो प्रोपोर्शनेट पास थ्रू अरेंजमेंट, अब अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर अपनी एंटिटी है वो इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रही है। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को गुड्स ट्रांसफर किए फॉर 10,000 और बी लिमिटेड ने एज इट इज वो गुड्स सी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए ऑन क्रेडिट बेसिस। तो बेसिकली यहाँ पे बी लिमिटेड जो है वो एज ए ट्रांसफर ही काम करिए, तो क्या ये बी लिमिटेड के हैंड्स में ट्रांसफर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो इसके अंदर अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, दैट इज कि एंटिटी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पे करने की अनलेस एंड अनटिल
वो रिसीव करे। सपोज यहाँ अपने केस के अंदर अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को पैसा नहीं देता है तो सी लिमिटेड की बी लिमिटेड की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो सी लिमिटेड को पे करे। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन, जो गुड्स हैं बी लिमिटेड वो किसी को सेल या फिर प्लेज नहीं कर सकता विदाउट परमिशन ऑफ सी लिमिटेड, या फिर सी लिमिटेड के पास और कोई ऐसी ऑब्लिगेशन है कि जैसे ही बी लिमिटेड के पास ए लिमिटेड से पैसा आएगा वो एज इट इज सी लिमिटेड को ट्रांसफर कर देगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, एल्स दोनों को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। If entity transfers substantially all risk and rewards of ownership of financial asset, then entity shall recognize, de-recognize the asset. अगर सभी substantial risk और reward transfer कर देती है entity तो ही entity को de-recognize करना है। अगर सब substantial risk और rewards transfer नहीं करती है, कुछ party asset का transfer करती है, suppose 8% डिवेंचर है तो उसका सिर्फ 5% interest payment अगर entity transfer करती है दूसरी entity को, तो सिर्फ वो जो part de-recognize किया सिर्फ उतना de-recognition करना है और जो rest amount है वो एंटिटी को अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। अब ऐसे कैसे करेगी? ये दो तरीके से कर सकती है, या तो वो असेट को डी-रिकॉग्नाइज कर दे, जो पार्ट कंटिन्यूइंग है उसको रिकॉग्नाइज कर ले, या फिर जो कंटिन्यूइंग असेट है उसके साथ में वो तो पूरा रिकॉग्नाइज रखे, उसके अगेंस्ट में एक लायबिलिटी खड़ी कर ले जितना उसको कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, सच दैट इन दोनों का प्रोपोर्शन ऐसा होना चाहिए कि जो अपने पास पार्ट कंटेंट है उतना जो जितना कैरिंग अमाउंट का अपने पास पार्ट कंटेंट है, जो डी रिकॉग्निशन का वाल पार्ट कंटेंट है उतनी ही अपने बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू आ रही हो। अब ये कब मानेंगे कि एंटिटी ने सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया है? अगर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हुआ है तो हम ये मानेंगे कि सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया है। अगर एंटिटी ने ट्रांसफर करा है कंट्रोल को, तो ट्रांसफर अगर एंटिटी ने कंट्रोल नहीं किया है तो एंटिटी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी फाइनेंशियल एसेट्स को। अब कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा? जब सामने वाले के हाथ में राइट टू सेल आएगा। अगर एंटिटी जो दोनों एंटिटीज के बीच में ए और बी के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ है और बी के पास ये राइट नहीं है जो गुड्स उसने एक्वायर किए हैं वो आगे सेल कर सके, या ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिसके अंदर ए लिमिटेड के पास प्रायर राइट है कि अगर बी लिमिटेड कहीं बेचने जाएगा तो ए लिमिटेड उसको पहले एक्वायर करेगा, तो इस केस के अंदर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इसके अंदर एज पर इंड AS ये कहता है कि जो एंटिटी के बीच में ट्रांजेक्शन है उसको डी रिकॉग्निशन की क्लासिफाई में नहीं माना जाएगा क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है। अगर कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है तो एंटिटी को डिरिकॉग्नाइज कर देना है बुक्स के अंदर से असेट, और रिकॉग्नाइज कर लेना है उतना पोर्शन ऑफ असेट जितना उसने रिटेन कर रखा है। इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, अगर एबिलिटी टू सेल द ट्रांसफर्ड गुड है तो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है, अगर वो नहीं है तो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल भी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, अब ये कब मानेंगे कि वो सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड है या नहीं है? जब प्रेजेंट फ्यूचर नेट कैश फ्लोज जो अपने को उस असेट से रिसीव होने वाले हैं, जब फ्यूचर नेट कैश फ्लोज अपने को उस असेट से रिसीव होने वाले हैं उसका पीवी और जो पार्ट हमने रिटेन किया है उससे जो कैश फ्लोज रिसीव होने वाले हैं उन दोनों का पीवी वो चेंज 10% या उससे ज्यादा 10 कम है तो सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड सब्सटेंशियली ट्रांसफर नहीं हुए हैं। अगर 10% या उससे ज्यादा है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड सब्सटेंशियली ट्रांसफर हो गए हैं। ट्रांसफर दैट डू नॉट क्वालिफाई फॉर डी-रिकॉग्निशन, if as a result of entity obtaining new financial asset or assuming a new financial liability or servicing liability, then the entity should recognize such asset or liability as fair value. Suppose एक कार मैन्युफैक्चरर ने कार सेल की है, अब कार सेल की है अंडर एन एग्रीमेंट कि वो एक साल तक उसकी सर्विसिंग फीस को फ्री में करेगा, तो जो सर्विसिंग फीस वाला कंपोनेंट है उसको अपन अलग से रिकॉग्नाइज करेंगे और जो कार सेल है उसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे असेट, बेसिकली अपने स्टॉक में से अपन कार को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे और जो सर्विसिंग कंपोनेंट है उसकी फेयर वैल्यू पे अपन उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब जो डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स है वो कैसे करेंगे? जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है बुक्स के अंदर आफ्टर डेप्रिसिएशन, दैट इज जिस दिन बिक रहा है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लग चुका चाहिए, और अगर कोई इंपेयरमेंट गेन और लॉस है जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कवर हो जाना चाहिए था, उन सबको कंसीडरेशन करने के बाद जो कैरिंग अमाउंट आ रही है और जो कंसीडरेशन मिला है, अगर उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को अपन पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली कैरिंग अमाउंट माइनस कंसीडरेशन रिसीव, अगर वो गेन है तो भी पीएनएल में जाएगा, अगर लॉस है तो भी पीएनएल में जाएगा। Part transfer. If the transferred asset is part of a larger financial asset, the part transferred qualifies for derecognition. The previous carrying amount, अब अगर कोई asset partly transfer हुआ है,
आधा ट्रांसफर हो गया और आधा रख लिया, तो दोनों के अंदर अपन उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो जो आधा ट्रांसफर हुआ है उसको बुक्स के अंदर से अपने को बेसिकली फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन देखनी है। जिस दिन वो पार्ट डीरिकॉग्नाइज हो रहा है उस दिन दोनों पार्ट्स की क्या फेयर वैल्यू है। अगर फेयर वैल्यू दोनों पार्ट्स की क्या फेयर वैल्यू है, तो जो कैरिंग अमाउंट है, सपोज अगर एक असेट 50% सोल्ड हो गया है, तो 50% सोल्ड हो गया है, तो कैरिंग अमाउंट अगर 100 रुपीज था और उसकी फेयर वैल्यू 80 रुपीज है, दूसरी की फेयर वैल्यू 20 रुपीज है, तो इनको ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू डिवाइड किया जाएगा ताकि दूसरा जो असेट है वो फेयर वैल्यू पे आ जाए। जो फेयर वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी वो एज पर इंड AS 113 द फेयर वैल्यू मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स के कारण डिटरमाइन की जाएगी। ट्रांसफर दैट डू नॉट क्वालिफाई फॉर डीरिकॉग्निशन, if a transfer do not result in recognition because the entity has retained substantially all risk and rewards or ownership of the transfer asset, the entity shall continue to recognize the transfer asset, and in subsequent period the entity shall recognize any income on the transfer asset or any expense incurred on the financial asset. अगर के ऊपर कोई इनकम देने को रिकॉर्ड करना है और दूसरा पार्ट लायबिलिटी खड़ी करी है उसके अगेंस्ट में अपने को एक्सपेंस इनकर्ड होता है तो भी वो अपने को रिकॉर्ड करना है, और ये दोनों रिकॉर्डेशन सेट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब इनकम के अगेंस्ट में आप एक्सपेंस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट इन द ट्रांसफर असेट, इफ सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो एंटिटी को ट्रांसफर असेट रिकॉग्नाइज करना चाहिए टू द एक्सटेंट जितना उसका इन्वॉल्वमेंट अभी भी है। Entity's continuing involvement in the transferred asset to the extent is expected to be change in value of the transferred asset. ये डिटरमाइन कैसे करेंगे? कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट कितना है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर कितना चेंज आया है बिफोर ट्रांसफर एंड आफ्टर ट्रांसफर, दोनों के बीच में जितना भी चेंज आया है उसके थ्रू अपन ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि उसका एक्सटेंट, उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है। For example, when entity's continuing involvement takes form of guaranteeing the transferred asset, the extent of the entity's continuing involvement is lower of the amount of asset or the maximum amount of consideration received that the entity would be required to repay. मतलब जो asset है उतनी या फिर जितना अमाउंट एंटिटी को पे करना पड़ सकता है, उन दोनों में से जो लोअर होगा उस पे अपन बुक्स के अंदर उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, C agrees with factoring company D to enter in debt factoring agreement. Under the terms of agreement, the factoring D agrees to pay 91.5 crore less a servicing charge of 1.5 crore. Net proceeds उससे 90 crore का आएगा in exchange of 100% of cash flows from short-term receivables. Receivables has a fair value of 100 crore and carrying amount जो books के अंदर amount है वो है 95 crore की. Entity C also writes a guarantee to the factoring company under which it will reimburse a credit loss up to 5 crore rupees. मतलब अगर 95 करोड़ के अंदर से 5 करोड़ का लॉस होता है तो 90 उतना तक का बियर एंटिटी सी फैक्टरिंग कंपनी को रिएम्बर्स कर देगी। और ये जो गारंटी फैक्टरिंग कंपनी को दी है एंटिटी सी ने, इसकी फेयर वैल्यू दे रखी है 0.5 करोड़ की। तो अब हमसे अपने को ये निकालना है कि कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट का अमाउंट कितना है जिसके थ्रू अपन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो अपन ने देखा था कि वो लोअर ऑफ होगा अमाउंट ऑफ असेट और मैक्सिमम अमाउंट एंड एंटिटी हैज टू पे। तो दोनों का लोअर ऑफ है, दैट इज अमाउंट ऑफ एसेट इज 95 करोड़ एंड द गारंटी अमाउंट जो गारंटी करी है 5 करोड़ तो वो, और 0.5 करोड़ जो फेयर वैल्यू है दैट इज 95 करोड़ एंड 5.5 करोड़। तो दोनों में से जो लोअर है 5.5 करोड़ पे अपन इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। Regular way purchase or sale of financial asset. A regular way purchase or sale of financial asset is a purchase or sale of financial asset under a contract where terms require delivery of asset. यहाँ ध्यान देने वाली बात है delivery of asset. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नेट सेटलमेंट के अंदर हो जाता है तो वो रेगुलर वे परचेज और सेल के अंदर नहीं आएगा। Within a time frame established generally by the regulation or convention in the marketplace concerned. अब इसके डी रिकॉग्निशन कैसे करना है? इसका डी रिकॉग्निशन जब अपन ने इनिशियल रिकॉग्नाइज किया था उस पर एक एग्जेम्पशन ली थी कि ट्रेड डेट सेटलमेंट पे रिकॉग्नाइज करेंगे या सेटलमेंट डेट सेटलमेंट पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसका डी रिकॉग्निशन भी उसी एग्जेम्पशन पे होगा कि अगर इनिशियली में ट्रेड डेट ली है तो ट्रेड डेट पे डी रिकॉग्नाइज करेंगे, और अगर सेटलमेंट डेट ली है तो सेटलमेंट डेट पे डी रिकॉग्नाइज करेंगे। हाउएवर ये जो प्रैक्टिस है वो कंसिस्टेंटली हर परचेज और सेल ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक परचेज पे तो अपन ट्रांजैक्शन वो ट्रेड डेट ले रहे हैं और दूसरे पे सेटलमेंट डेट ले रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट डी रिकॉग्नाइजिंग एन असेट, अगर अपन का पार्ट इन्वॉल्वमेंट में है एक असेट के अंदर और हाफ पार्ट अपन ने डी रिकॉग्नाइज नहीं किया है बुक्स के अंदर फाइनेंशियल असेट को, तो उसके एसोसिएट लायबिलिटी अपने को रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी जितना अमाउंट अपने को उसके कंसिडरेशन में मिला है।
तो द एसोसिएट लायबिलिटी इज मेजर्ड, उसका मेजरमेंट कैसे होगा? द एसोसिएट लायबिलिटी इज मेजर्ड इन सच अ वे that the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability is the amortized cost of the rights and obligation retained by the entity if the transferred asset is measured at amortized cost. अगर जो transferred asset है उसको initial recognition पे अपन ने amortized cost पे measure किया था, तो associated liability को अपन उस cost पे recognize करेंगे जिसके अंदर अपने को amortized का जो अपन ने retain कर रखा है part, उसका वैल्यू रिमेनिंग में है। मतलब नेट ऑफ अगर अपन करें तो जो अमोर्टाइज कॉस्ट रिमेनिंग पोर्शन का अपने पास है उसकी वैल्यू अपने बुक्स के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और अगर वो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज हो रखा है जो एसेट ट्रांसफर हुआ है, तो इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रिटेन, उतने ही वैल्यू पे अपने को बुक्स के अंदर एसोसिएटेड लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है। Points to note यहाँ पे क्या है? If the transferred asset continue to be recognized in the asset and the associated liability shall not be offset, मतलब अगर अपने पास asset है, उसका एक पार्ट ही है, तो अपन ने तो पूरा बुक्स के अंदर पूरा asset दिखा रखा है और उसके अगेंस्ट पे अपन ने एक associated liability खड़ी कर रखी है, तो इंडिया से कहता है कि आप उन दोनों को ऑफसेट नहीं कर सकते बुक्स के अंदर, आपको उन दोनों को अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई इनकम अराइज हो रही है अपने ट्रांसफर्ड एसेट पे या फिर कोई एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है एसोसिएटेड लायबिलिटी पे, उन दोनों को भी आपको सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उन दोनों को आप सेट ऑफ करके पीएनएल में नहीं दिखा सकते। अकाउंटिंग ऑफ कोलेटरल, अब ट्रांसफरी ने अकाउंटिंग ऑफ कोलेटरल, अगर कोई कोलेटरल है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? इफ द ट्रांसफरी has right to sell or replace the collateral, then the transferor shall reclassify the asset in its balance sheet separately from other asset. मतलब अगर अपन ने सामने वाली पार्टी को ये राइट दिया है कि वो सेल कर सकता है या प्लेज कर सकता है, अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ तो अपने को अपनी बुक्स के अंदर उस एसेट के अंदर उस एसेट को बाकी एसेट से अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा और उसके नीचे लिखना पड़ेगा कि ये कंडीशन अटैच्ड है। If the transfer sells the collateral, it shall recognize the proceeds of the sale and a liability measured at fair value for its obligation to return the collateral. अगर फॉर इंस्टेंस जो ट्रांसफरी है उसने कोलेटरल जिसके अगेंस्ट जिसको अपन ने कोलेटरल जमा कराया था उसने कोलेटरल बेच दिया है, तो उसको क्या रिकॉग्नाइज करना है? उससे जो प्रोसीड्स हुई, इसको जो कंसिडरेशन मिला कोलेटरल बेच के, एक तो वो प्लस जो लायबिलिटी आई है कि क्योंकि कोलेटरल उसने बेच दिया है तो कोलेटरल रिटर्न करने की, अगर कोई डिफॉल्ट नहीं करता है सामने वाला पार्टी तो आपको कोलेटरल रिटर्न करना पड़ता है, पर आपने क्योंकि बेच दिया, क्योंकि ये एक लायबिलिटी खड़ी हो गई है, तो जो कोलेटरल जो ये लायबिलिटी आई है जो आपने कोलेटरल भेजा है उसको फेयर वैल्यू, उसकी एक्चुअली में आप फेयर वैल्यू क्या है उसके बेसिस पे अपन बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज कर लेंगे। If the transferee defaults under the terms of loan and of the contract and is no longer entitled to redeem the collateral, it shall derecognize the collateral and the transferee shall recognize the collateral. अगर ट्रांसफरर ने डिफॉल्ट कर दिया है टर्म्स ऑफ पेमेंट के अंदर, तो ट्रांसफरी अपने बुक्स के अंदर कोलेटरल को एसेट रिकॉग्नाइज कर लेगा और ट्रांसफरर अपने बुक्स के अंदर एसेट्स को डीरिकॉग्नाइज करेगा। पर अगर ट्रांसफरी ने पहले ही उस कोलेटरल को बेच दिया है तो जो एसोसिएटेड लायबिलिटी उसने रिकॉर्ड की थी एट फेयर वैल्यू वो उसको डीरिकॉग्नाइज कर देगा। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सी, द ट्रांसफरर शैल कंटिन्यू टू कैरी, अगर कुछ भी कंडीशन नहीं होता है और नॉर्मल सेल परचेज के नॉर्मल सब चलता रहता है, मतलब रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रहे हैं, तो ट्रांसफरर जो है वो अपनी बुक्स के अंदर एसेट को रिकॉग्नाइज कर लेगा और करता चला जाएगा अंडर अ कंडीशन कि वो उसको बता दे, डिस्क्लोज कर दे कि उसके अगेंस्ट में वो प्लेज्ड है। Assets measured at amortized cost. When entity measured the transfer asset at amortized cost, the associated liability is also measured at the cost adjusted to amortization. और उन दोनों के बीच में जो difference आएगा, that is the gross carrying amount of the transferred asset and the difference of the associated liability measured at amortized cost. उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ले जाएंगे, पर कैसे लेके जाएंगे? यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि जिस दिन हमने वो एसोसिएटेड लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया और जो पार्ट एसेट रिकॉग्नाइज किया है उन दोनों सेम डे नहीं लेके जाएंगे, जब तक वो एसोसिएटेड लायबिलिटी या पार्ट एसेट पूरा या तो कैश फ्लो से एक्सपायर नहीं हो जाते, तब तक उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये तो ही एसेट की बात। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी को हम कब डी रिकॉग्नाइज करेंगे? फाइनेंशियल लायबिलिटी को हम जब डी रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमारी ऑब्लिगेशन टू पे वो ऑब्लिगेशन टू पे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, वो कैंसिल हो गई है, एक्सपायर हो गई है, या वो अपन ने डिलीवर कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है। कोई भी एक्सचेंज बिटवीन द एग्जिस्टिंग बोरोवर एंड लेंडर ऑफ अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इन एक्सचेंज ऑफ दिस एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट विद नॉट सब्सिक्वेंट चेंज इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो
उसके अंदर क्या होगा, ओरिजिनल फाइनेंशियल एसेट को अपन डीरिकॉग्नाइज कर देंगे और जो न्यू एसेट हुई है उसको अपन रिकॉग्नाइज कर लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो पार्टीज है वो सेम होनी चाहिए और सब्सिक्वेंट चेंज नहीं होना चाहिए टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। फाइनेंशियल लायबिलिटी को डीरिकॉग्नाइज करेंगे कैसे, द ट्रांसफर्ड असेट की जो कंसिडरेशन मिली है वो और जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है बुक्स के अंदर वो, अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और डीरिकॉग्निशन अकाउंटिंग हो जाएगी। इफ एन एंटिटी रीपर्चेजेस अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, अगर एंटिटी ने फाइनेंशियल लायबिलिटी को सेल कर दिया और उसका कुछ पार्ट रीपर्चेज किया है, तो वो जो पार्ट है उसको एंटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ द पार्ट्स, जो पार्ट रिकॉग्नाइज नहीं किया है और जो पार्ट रिकॉग्नाइज किया है, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर उन दोनों पार्ट्स की क्या वैल्यू थी उसके बेसिस में कैरिंग अमाउंट के बेसिस, कैरिंग अमाउंट को उस फेयर वैल्यू के बेसिस में डिवाइड करके रिकॉग्नाइज करना है बुक्स के अंदर जो पार्ट हमने एक्वायर किया है। अगर कोई इश्यूअर है जिसने खुद ने इंस्ट्रूमेंट इशू किया, सपोज ए लिमिटेड ने 8% डिवेंचर्स इशू किए हैं और वही 8% डिवेंचर्स ए लिमिटेड मार्केट से परचेज कर लेती है, तो ये माना जाएगा, भले से उस ए लिमिटेड का इंटेंशन ही है कि वो वापस उसको रीसेल करेगी, पर फिर भी एज पर बुक्स, एज पर इंड AS ये माना जाएगा कि वो जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो एक्सटिंग्विश हो गई है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिसने इशू किया है वो उसके पास आ चुकी है। अब सब्सटेंशियली डिफरेंट कब माना जाएगा, जब उसका सब्सटेंशियल डिफरेंट तब माना जाएगा जब फ्यूचर कैश फ्लोज का जो प्रेजेंट वैल्यू है फ्रॉम द ट्रांसफर्ड असेट एंड द पार्ट रिकॉग्नाइज, दोनों के बीच में 10% या उससे ज्यादा का चेंज है तो सब्सटेंशियली चेंज माना जाएगा। रिलीज ऑफ डेटर बाय अ क्रेडिटर, where a creditor releases a debtor from its present obligation to make payment, but debtor assumes a guarantee obligation to pay if the party assumes primary responsibility defaults the debtor। मतलब क्रेडिटर ने रिलीज कर दिया डेटर को कि क्रेडिटर ने पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, और पर डेटर ने अज्यूम किया है थर्ड पार्टी की बेसिस पे कि अगर उसने पे नहीं किया तो मैं करूंगा, तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो रिकॉग्नाइज अ न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन फॉर द गारंटी अमाउंट and recognize gain or loss based on the difference between any proceeds paid and the carrying amount of the original financial liability less the fair value of any financial liability. For example, A Limited purchased goods from B Limited for 10,000 rupees on credit basis. A Limited sold the same goods to C Limited for 10,000 rupees on credit basis. Due to progressionity of funds, A Limited enters into an agreement with B Limited under which B Limited releases A Limited for its obligation to make payment on the condition that A Limited assumes a guarantee obligation to pay if C Limited defaults in making payment. Fair value of obligation for guarantee is rupees 8,000. Determine the accounting treatment. यहाँ क्या हो रहा है, A Limited ने B Limited से goods acquire किए for 10,000 rupees और उन्हीं goods को A Limited ने C Limited को transfer कर दिया है for 10,000 rupees. But क्योंकि A Limited को funds की requirement थी, तो A Limited B Limited के पास गया है और दोनों ने एक एग्रीमेंट एंटर किया है जिसके अंदर बी लिमिटेड डायरेक्टली सी लिमिटेड से पेमेंट कलेक्ट करेगा, और अगर पेमेंट कलेक्ट सी लिमिटेड डिफॉल्ट करता है पेमेंट देने में, तो ए लिमिटेड उसको गारंटी दे रहा है बी लिमिटेड को कि मैं उसके अगेंस्ट में पे कर दूंगा, और उस गारंटी की जो फेयर वैल्यू है वो 8,000 रुपीज है। तो ए लिमिटेड अपनी बुक्स के अंदर क्या एंट्री पास करेगा, ए लिमिटेड अपनी बुक्स के अंदर जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है उसको 10,000 रुपीज की जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी पे करनी थी उसको डीरिकॉग्नाइज कर देगा, और जो 8,000 की एक नई लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगा जो कि गारंटी अमाउंट की है, और जो डिफरेंस है 10,000 और 8,000 का 2,000 का वो अपने गेन उसको वो गेन के अंदर पीएनएल के अंदर गेन रिकॉग्नाइज कर लेगा। थैंक यू।